Good evening, ladies and gentlemen. Hope your audio and video is clear. Please check your internet. I have done for mine, so it's perfect. Just let me know. You can use only QA box, so use please answer or reply or ask anything in the QA box itself. So just let me know if my audio and video is clear. I would request if you can just make sure your internet is also being properly active, and if you have any microphone issues or if you're using any Bluetooth, please make sure at the time of QA sessions, please keep your microphones clear so that your voice is completely audible. Okay. Perfect. So as per Indian Standard Time, we need to wait for another 5 more minutes. So as usual. कुछ लोग लेट हो ही जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लो. Till then, you guys can tell me where are you guys from. You'll be able to listen to me. Visuals, audio दिख सकता है, मगर chat आप किसी और से नहीं कर सकते. जो भी अपने कंपनी के प्रमोशंस कर रहे हो, जस्ट वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है. So sorry for that. ये हरकतें मत करो यार. Okay. So Mumbai, Chennai, Coimbatore, India. Okay. इंडिया काफी छोटी जगह है ना. Yeah, we got to know that. Goa, Bangalore, Hyderabad. Okay. Nice. Jaipur. Okay. Perfect. Okay. So yeah, we'll wait for another 2 more minutes. We'll start at 8:05. Okay. So what is the reason you guys are here? किसी को आइडिया है आप क्यों हो यहाँ पे? आपने ऑर्गेनाइज किया इसलिए आ गए. So is that so? एक बेसिक क्लियरिटी है सबको? Why are you here? What are you going to do here? Right? To become a star exporter. Perfect. Learn export import. Okay. What is your primary goal? Do you want to be an exporter or do you want to be an importer? Exporter. Perfect. मैं तो चाहता हूँ दोनों करो, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है you become exporters, and I would prefer 80% you should be on exports and 20% you should be on imports. दोनों आना चाहिए, दोनों करना चाहिए, because there are few products that you would never manufacture in India because of various sources and various reasons. But in many situations, you need to know what is being produced in which country and what is being produced and what is something that you shouldn't import or what is that you should import from the market. Okay. काफी चीजों के बारे में आज क्लैरिटी आपको मिल जाएगा. That would be a great thing. Okay. Perfect. So let's get started. Indian Standard Time is up. और इससे अगर लेट होता है कोई, then God bless them. Just let me know अगर सबको स्क्रीन दिख रहा है. Yes, no. दिख रहा है. Perfect. Yes. Okay. Sounds good. Okay, guys. 2nd March, 8 p.m. to 10 p.m. Approximately 10 p.m. Keep it idle. इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. Just hoping that इसके ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि लोगों की I know people have come from various background, तो काम तो हो चुका होगा, कहीं पे काम कर रहे होंगे and various things. Okay. Just give me a heads up. Is any bankers here?
डोंट वरी, लोन नहीं मांग रहा हूँ आपसे. ओके, बैंकर्स, ओके, गॉट इट. यस, बैंक. ओके, ठीक है, गॉट इट. ओके, जस्ट छोटी सी इंट्रोडक्शन. जीबी एक्सपर्ट्स इज अ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी. हम लोग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग भी देते हैं. दैट्स द रीजन यू गाइस आर हियर. Along with that, I run the company along with other my founders, which are around 6 members. We are all put together 7. So we handle various departments of the businesses, and I am in the business. What I say? I am in the business from more than 12, 13 years now. This typical JB Experts company, but before that, I've been working in the same industry for more than 8 years. So all put together, 20 plus years. Plus, if you know that my father made me to work, fill the BL at the age of 13, 14, 15, so on and so forth. Because this is my family business, because all my this is my third generation in the business. Even my family was being into it. So my grandpa was in cottons, my dad was into civil equipments, and now I'm into service industry. So all are in export, import, either service or one or the other way that we are doing it. Okay. So this we are going to conduct. The reason for this event is JB Experts is expensive. That is the thought what everyone had. I think you people also had the same thing. यार आप बहुत महंगे हो, तो हमारी जनरल पब्लिक के लिए कोई सर्विसेज है नहीं अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल. तो अगर आपसे कुछ सीखना है, करना है, देन दिस इज नॉट अफोर्डेबल. तो कुछ ऐसा करिए. बिफोर हम लोग करते थे, बट द प्रॉब्लम इज वन वे या ग्रुप में क्या होता है ना, देयर इज नो पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन. अगर आपको एक बार मैंने कुछ बोल दिया, उसके बाद क्या होगा और उसके लिए और क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए, यू नेवर गेट टू नो इट. दैट इज द ओनली रीजन हम लोग नॉर्मली ये जो भी हम लोग ग्रुप सेशंस करते थे, वी हैड स्टॉप्ड इट. बट अगेन, अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम. पैसे कम होते हैं, सिचुएशंस चैलेंजिंग होती है, एंड अगर कोई सिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड मोर ओवर इसके बदले में भी ऐसा हुआ कि सर हम तो आपको जानते हैं, बट आपकी कोई सर्विसेज हम ले नहीं पाते हैं, एंड आई हैव टू गो फॉर समवेयर एल्स, एंड आई डोंट नो वो लोग सही बताएंगे. अगेन दे हैड कम बैक. तो एक थोड़ी 2-3 इमोशनल स्टोरीज हो चुके हैं. सो देन वी थॉट लाइक ओके, चलो ठीक है, अगर इफ समवन रियली नीड्स अ हेल्प, इफ दे कैन गो फॉर इट, वी कैन सपोर्ट यू इन ऑल द मैनर्स. जितनी भी मेरी कोशिश ये रहेगी, आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. जितना एक्सट्रीम लेवल तक हम जा सकते हैं, विल गो टिल दैन. उसके बाद जो होगा, दैट विल बी अगेन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह जो भी आपको रहेगा टूल्स एंड सॉफ्टवेयर का, ये आपको एडिशनली आपको लेना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर टू रन योर बिजनेस. क्योंकि इनिशियली मुझे नहीं लगता, इफ यू गाइज आर हियर फॉर अ लो कॉस्ट और इकोनॉमिकल प्लान, तो आपको एक सिचुएशन ये भी होगा कि सर कोई सॉफ्टवेयर ऐसे ना बता देना कि लाखों लग जाए, जो आपको देने थे वो वहां पे जा रहे हैं. आई हैव नो अदर इंटेंशंस हियर. जो भी सॉफ्टवेयर आपको रेकमेंड होगा, दैट इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री. उसके अलावा आई जस्ट शो यू ऑल द शॉर्टकट्स आल्सो, जो भी काम में आ सकते हैं. ओके, विच आर प्रैक्टिकली. एंड मेरी टीम उस लेवल पे काम नहीं करता है, दैट्स द रीजन हमारी वो चीजें काम थोड़ी प्राइसेस थोड़ी प्रीमियम चली जाती है. बट स्टिल व्हाट आई वुड से इज, आप अपने लिए सोच लेना कि एक मिनिमम 20,000 to 30,000 थोड़ा अलग से अगर आप रख पाओ फॉर सॉफ्टवेयर टूल्स, टेक्नोलॉजीज और अदर थिंग, तो ये आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस. आज हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि क्या होता है, 1000 चीजें गलत हो सकती है, एक चीज सही होना चाहिए हमेशा. दैट्स योर माइंडसेट. इफ thousands of things can go wrong, can you control the war in GCC? जो ईरान, इराक, कुवैत, कतार, दुबई जो भी हो रहा है, कैन यू कंट्रोल दैट? नो. मगर क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपको बिजनेस की नजरिया, द वे यू लुक एट द बिजनेस, द चैलेंजेस व्हाट द बिजनेसेस थ्रो ऑन यू, और हर बार आपको सही डिसीजन लेने के लिए एक ही चीज चाहिए होगा, दैट्स योर माइंडसेट. अगर हम लोग इतने कंपनीज के साथ काम करते हैं, एंड वी हैव, आज भी हमारी कितनी सारी मीटिंग्स हुई है, फ्रॉम ग्रीक टू दुबई, सारी जितनी भी मैप से जितनी भी कंट्रीज आती है, सारों से हमारी बात हो गई. बट आर वी ऐसे है कि हाँ यार रोहित सर आप थोड़े मुरझा गए हो, तो इज इट लाइक दैट? हमारी एनर्जी कम नहीं होती है, हमारे काम कम नहीं होते हैं, हमारी चैलेंजेस कम नहीं होती हैं. आई हैव द मीटिंग स्टिल 3 o'clock in the morning. तो कोई नहीं फर्क पड़ता. इफ यू एंजॉय दिस, गुड.
आपको कितनी मीटिंग्स करनी है, कितनी भी कॉल्स करने हैं, टेक इट फॉर इट। बट एक ही चीज है कि अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है, आपकी माइंडसेट सही नहीं है, देन यू विल सिट एंड क्राई फॉर इट, क्योंकि वो चीजें आपको हेल्प नहीं करेगा। एम आई क्लियर? इज एवरीवन हियर टू मेक योर फाउंडेशन राइट? माइंडसेट करेक्ट करने के लिए आए या नहीं आए? जस्ट से यस और माइंडसेट इन द चैट बॉक्स, a QA box if I have to say. Mindset. Perfect. So let's get started. जिस भी पावर में आप मानते हो या ताकत में मानते हो, जस्ट आस्क फॉर हेल्प, काम करना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, सो दैट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट यहाँ पे अटेंशन नहीं लेते हो। ये उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट तक स्टे करते हैं, हु अंडरस्टैंड्स द होल थिंग। एंगेजमेंट अगर आपका रहेगा, दैट्स गुड। ओके, ये आज का फ्रेमवर्क है, वेयर वील अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, क्या मॉडल होती है, वाई एक्सपोर्ट, क्यों करना है, क्या चीजें हो सकती है, वगैरह वगैरह। लीगल सेटअप एंड रजिस्ट्रेशन जिनकी कुछ भी नहीं है, सर मैं अभी सोच रहा हूं करने का, मगर मैं कहां से करूं, वेयर शुड आई स्टार्ट विथ, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। सब प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, हाउ डू आई सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। इसमें अगर मुझे प्रोडक्ट तो ठीक है, बट व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट। उसके बाद एचएस कोड, ट्रेड डेटास, और इसमें क्या चीजें हमारे लिए मदद कर सकता है, क्या चीजें हमारे लिए मदद नहीं करेगी। दिस इज ऑल्सो दैट वी आर गोइंग टू लुक आउट हियर। एंड देन द लाइव Q&A session, you can unmute, I'll allow you, you can raise your hand, you can unmute yourself, and then you can ask me your questions, whatever you have. जो what I would request is, पूछने के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हो, but if you stick to this topic today, थोड़ी हम लोग टाइम के अंदर खत्म कर सकते हैं। ओके, so why export from India? Are you in a situation जहां पे आप एक्सपोर्ट करो और इंडिया पैसा ना कमाए? Are we in that situation? आज हम जो भी कमाते हैं, इंडिया इज बेनिफिटेड, हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी, we earn the money from there, our lifestyle changes because of that. Yes or no? How many of you जो माइंडसेट रखते हैं कि सर मनी इज द सेकेंडरी, लेट मी हेल्प इंडियन इकोनॉमी, ये कितने लोगों का है? हाउ मेनी पीपल हैव दिस माइंडसेट? सर मुझे ना देश के लिए भला करना है, नॉट फॉर मी बट आई डू इट फॉर द कंट्री। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? गाइज लेट मी टेल यू, मैं खुद भी ऐसे नहीं सोचता, आपको भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देश आपसे बनती है। देखो क्या होता है ना, देयर इज ओनली वन सेइंग, यू कैन नॉट पोर वाटर फ्रॉम एन एम्प्टी बकेट। खाली बकेट से पानी नहीं किसी को दिया जाता ना, क्योंकि आपका बकेट ही खाली है, पानी किसको दे रहे हो? अंडरस्टैंड दैट? आप सक्षम बनो, देश अपने आप सक्षम बन जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि लोग सोचते हैं कि देश का भला करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर आप एक बार अपने आप को सुधारना शुरू करोगे ना, देश अपने आप सुधारना शुरू हो जाएगा। राइट? सो एक बहुत बड़ी डेटा अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर जो बिलियंस में है? 778 बिलियंस। इससे भी बहुत सारे डेटाज अभी हम लोग पार कर चुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रिलियंस के ऊपर हमारी बात हो रही है, तो कंसिडर दैट वी आर अ गुड इकोनॉमी। ओके, सो करेंटली CAGR की ग्रोथ कितनी है? व्हाट इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ? व्हाट इज CAGR ग्रोथ? ये अगर आप देखोगे विच इज 15%, विच इज वेरी गुड। नॉर्मली एक गोल्डन लाइन हम बोलते हैं फॉर 5%। अगर कोई भी 5% के ऊपर CAGR पे ग्रोथ हो रहा है, देन इट्स अ गुड नंबर। इंडिया की 15% के ऊपर हो रहा है, देन इट्स रियली गुड, इवन कंसिडरिंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प का टाइम नहीं आया था, तो दैट्स व्हाट वी कंसिडरिंग आइडल। ओके, 200 प्लस कंट्रीज पे हमारी एक्सपोर्ट होती है। सर हमारी प्रोडक्ट कहां जाती है? 200 कंट्री पे जाती है। वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 200 कंट्रीज। हाँ, इसमें सर 200 कंट्रीज, इज इट लाइक ट्रू? डेटा में दिखा दूंगा, यू कैन जस्ट वैल्यूएट इट। कहीं पे छोटी होती है, कहीं पे बड़ी होती है, एंड हाउ डू यू लुक एट टू द नंबर ऑफ कंट्रीज इज ऑल्सो मैटर्स। ओके, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स का मतलब यही होता है, इधर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और इधर यू आर अ मर्चेंट ट्रेडर। यही दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर इज ओके, जो मैन्युफैक्चर करता है वो खुद भी एक्सपोर्ट करेगा, और जो उनके पास मटेरियल लेके आगे जो बेचेगा अपना मार्जिन डाल के, उसको हम लोग मर्चेंट ट्रेडर कॉल करते हैं। राइट? मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट ट्रेडर, दीज आर द टू ऑप्शंस।
पैसे ज्यादा किसको चाहिए? पैसे तो दोनों को चाहिए. Everyone needs money. Without money, you don't run the business. Even if my team has written here, you don't need a factory. Trading company can start with zero investment. Zero के ऊपर एक स्टार भी है. What do you mean by zero? इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है on YouTube. Just go and check if possible. कभी भी जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है. There is lot of things that you have to see through, right? तो यहां पे अगर इंडिया इज ऑन अ फिफ्थ इकोनॉमी एंड विच इज ग्लोबल बायर्स बाय फ्रॉम इंडियन प्रोडक्ट्स, ग्लोबल डिमांड है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एंड मोर ओवर टुडे जिनसे भी मेरी बात होती है ना, दे डोंट हैव अ नेगेटिव थॉट सेइंग दैट अरे यार इंडिया वाले ऐसे हैं. देयर इज नो स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ अ सेइंग दैट ओके इंडियंस आर प्रोडक्ट्स आर लाइक दिस. जैसे हम चाइना को बोलते हैं ना यार थोड़ी घटिया किस्म की क्वालिटी मिलती है, नहीं, चाइना की बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, बट वो प्रोडक्ट्स किसी और मार्केट में जाता है, इंडिया में नहीं आता, क्योंकि हम लोग अगेन वी लुक एट द प्राइस. जो मार्केट जैसा रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट क्वालिटी उतारनी पड़ती है. दैट इज व्हाट द चाइनीज डू. हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए एक ही तरह से निकालते हैं. दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स. प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट चेंज होती है, सर्टिफिकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना होता है. द पीपल डोंट चेंज देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मार्केट्स. दे गो एज स्टैंडर्डाइज्ड and say that okay this is what I have, let the people buy. No, you need to look into the market, you need to look into the people, you need to look at the people how much the money they have. Only then you need to plan whether this product suits them or not. मार्केट गलत सिलेक्शन कैसे होता है, राइट? गलत मार्केट कैसे सिलेक्शन होती है? सर वहां पे लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर आपने क्यों उतारा? सर यहाँ पे तो लोगों के पास बहुत अच्छे पैसे हैं मगर मैं तो कम का लेके आया, क्यों लेके आया? These are all the self questions, self doubts that you need to ask yourself whenever you are doing in this business. एक चीज आपको क्लियरली होना चाहिए कि अगर हमारे कंट्री में बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं आती है, कुछ आते हैं सिर्फ मेट्रो सिटीज में बिक जाते हैं, कुछ आते हैं कोई छोटी मोटी कंट्री सिटीज में बिकती है. अगर जो मेट्रो सिटी में बिकता है वो टायर 2 तक आता ही नहीं है. यार ये जो ब्रांड तूने बोला ना, ये ब्रांड हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है. क्यों? वो लोग नहीं समझते हैं टायर 2 या टायर 3 सिटी को मार्केट, इसीलिए वो सिर्फ अर्बन सिटीज में मिलती है. बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, सॉर्ट ऑफ दैट. बाकी सिटीज में क्यों नहीं मिलती या बाकी छोटे शहरों में नहीं मिलती? बिकॉज जो प्रीमियम मार्केट्स यहाँ पे लोगों के पास जितने पैसे होंगे, जितने स्पेंड करेंगे, उतना टायर 2 या टायर 3 सिटीज के मेंटेलिटी में भी नहीं रहती है. कंसिडर दैट यही चीज यू नीड टू पिक अप टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंट्रीज सो दैट you can sell your premium product in tier 1, your mid level in tier 2, and your low grade qualities in the tier 3. Qualities low grade या सब प्रीमियम बताना का मतलब ये नहीं है कि तुम घटिया क्वालिटी मार्केट में उतार. You are getting a good product but at that affordable price. आज हमारे कोर्स ये प्राइस पे है, दूसरे प्राइजेस पे भी कोर्सेज हैं, तीसरे प्राइजेस पे भी हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम है, मगर एक अफोर्डेबिलिटी स्केल के ऊपर यहाँ पे साइन इन ज्यादा है. क्यों? मोर देन 1200 पीपल आर वॉचिंग इट. तो इतना आपको ये भारी क्या समझ लीजिए. इफ इतना मेरे पास क्लाइंट्स है क्या ऑन द प्रीमियम प्लान? नहीं. प्रीमियम प्लान्स हमेशा आपको लिमिटेड में मिलेगा, बट द मोर मार्जिन एंड द मोर मनी यू मेक देयर एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट. जब छोटे काम करोगे देन ऑब्वियसली चीजें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, एफर्ट गोज द सेम, बट उसकी मार्जिन उतनी नहीं मिलती. बट या योर इंटेंशन इज नॉट दैट. मुझे मार्केट जितना हो सके कवर करो, ब्रांड बनाओ, देन ग्रो अकॉर्डिंग टू द मार्केट. क्या पता आपको द टायर 2 और टायर 3 सिटीज कैन चेंज एनी टाइम, अफोर्डेबिलिटी वहां पे ज्यादा बन जाए एंड यू आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. एंड दिस आर ऑल कम्स इन अ लर्निंग प्रोसेस. ओके, सो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज व्हाट पीपल लुक एट. हाई क्वालिटी, जिनको सस्ता चाहिए अच्छे प्राइस पे चाहिए. अच्छा प्राइस का मतलब कम प्राइस में. अच्छा प्राइस कभी ये नहीं होगा कि सर अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और अच्छे प्राइस पे चाहिए. अच्छा प्राइस का मतलब कभी किसी ने बोला है क्या आप जाके नहीं नहीं ये तो आपने 1000 में दे रहे हो, इसको 2000 करो? नहीं. यू ऑलवेज लुक एट 500 रुपीज. थोड़ा कम करो, इसको प्राइस कम करो, क्वालिटी बढ़ा करो. दैट्स व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट. आप और मे बी सेम सिचुएशन पे है. सो दिस इज हाउ द होल मार्केट इज. इंसान की फितरत नहीं बदलती है, कहीं पे भी जाओ इट्स द सेम सिचुएशन. कितने भी बड़ी मार्केट आप समझोगे, बट इवन दे विल ऑल्सो बार्गेन. ओके, तो गवर्नमेंट अट्रैक्ट्स प्रमोशन. एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन है बट नॉट फॉर इंपोर्ट्स. क्यों मैं बोल रहा था कि आपको 80% एक्सपोर्ट करना चाहिए, 20% इंपोर्ट करना चाहिए?
क्योंकि 20% की प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं मिलती, तो अगेन इफ यू हैव कनेक्शंस गेट द प्रोडक्ट्स। 80% क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप एक्सपोर्ट करो, आप इंपोर्ट कम करो, सो दैट इंडिया की रिजर्व्स बढ़े, राइट? हमेशा यही होता है ना कि आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए, मोर ओवर द एक्सपेंडिचर्स, वरना भिखारी बन जाओगे। हैव यू सेड से ये चीजें आप लोग को काफी लोग बोलते हैं ना, द फाइनेंशियल एडवाइजर्स या आपके माँ बाप या कोई भी who has a goodwill upon you। हाँ, अगर बीवियां नहीं बचने देते पैसे, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट उसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है टू ओके। मगर एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको जो पैसे मिलते हैं, आपको हमेशा कमाना ज्यादा होता है, खर्चा कम करना होता है, देन यू हैव सेविंग। और जितना सेविंग करोगे उतना बड़ा घर बनेगा, या उतना बड़ा रेपुटेशन आपका बनेगा, या उतना बड़ा देश आपका बनेगा। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, ओके। सो डिजिटल टूल्स आज के टाइम पे कमियां नहीं है, टू टेल यू फ्रैंकली, यू हैव टूल्स फॉर एवरीथिंग। अगर नहीं भी है, बनाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इवन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन मैनेज, ओके। मैं तरीके बता देता हूं, डोंट नीड टू वरी, डोंट नीड टू टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस सेइंग दैट ओके व्हाट इफ आई डोंट नो इट, व्हाट इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। देखो बेसिक, जहां अभी यहाँ पे मुझे सुन रहे हो ना, इतना ही लगेगा वहां पे भी, तो जस्ट कीप इट दैट वे, ओके। इवन इफ यू डोंट हैव अ फैक्ट्री, देखो आज भी मैं बोल रहा हूं, जेबी एक्सपर्ट्स कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, आप बना सकते हो। जेबी एक्सपर्ट्स अपनी प्रोडक्ट बेचता नहीं है, आप बेच सकते हो। जेबी एक्सपर्ट्स अपने नाम से एक्सपोर्ट नहीं करता है, आप कर सकते हो। सो आर यू इन अ बेटर सिचुएशन देन माइन, या बिजनेस प्रोजेक्शन वाइज पे आप मेरे से भी ज्यादा ऊपर हो? आप प्रोडक्ट बना भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो, राइट? हमारी कंपनी पीछे रह के भी वी आर ग्रोन सो बिग, आप देख लो, वी आर 1500 प्लस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। We have 4 offices in India, 7 offices abroad. Over 12 years in the business with JB Express brand. We have 18 plus subsidiaries. We have collaborators. We have 900 plus customers catering on premium services. We are small and big services. We are doing somewhere around 12,000 per year as a customers count. And everything is under the roof जहां पे हम लोग किसी का कहीं पे भी हम लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं। We don't export our name. We always promote your company. We always work behind the brand. आपको तो वो नहीं करना है ना, you're going to work on your brand. आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और कितना कमा सकते हो। हमारी रेवेन्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ईदर स्टैंडर्डाइज फी या एक स्टैंडर्डाइज कमीशन, विच वी कॉल इट एज अ सक्सेस फी। तो एक परसेंटेज पे होगा, दैट इज आउट ऑफ योर प्रॉफिट। प्रॉफिट में एक छोटी परसेंटेज होगी, नॉट योर होल प्रॉफिट। अगर पूरा प्रॉफिट खा जाऊंगा तो बिजनेस में मैं बना नहीं पाऊंगा। दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आई वांट टू मेक श्योर माय पार्टनर आल्सो सक्सीड, अलोंग विद देम वी आल्सो सक्सीड। तो दोनों सिचुएशंस पे हमारे पास ऐसी ही ऑप्शन बचती है जहां पे वी वर्क टुगेदर एंड वी सपोर्ट ईच अदर एंड मेक देम विन एंड वी गेट आवर कट व्हाटएवर इट इज, राइट? इधर फी पे काम करते हैं या फी विद कॉम्बिनेशन विद सक्सेस फी पे काम करते हैं, विच इज अ परसेंटेज, या स्टैंडर्डाइज फी पे रहती हैं। बट आपके यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप प्रोडक्ट किसी और से लेके आप उसको मार्जिन पे डाल के आप उसको आगे पुश कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, विच आई वुड से अगर आपके पास नॉलेज है उस प्रोडक्ट का, यू हैव इट। सो आज के टाइम पे व्हाट इज द वर्किंग मॉडल? बेसिक एक्सपोर्ट अगर समझना है, व्हाट इज एग्जैक्टली द बिजनेस मॉडल दैट यू कैन वर्क विद? एक पहली चीज आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन सोल्ड। कोई मार्केटिंग, कोई रोहित देसाई, कोई भी आप दुनिया में ऐसा उठा के लेके आ जाओ जो प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है, वो प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार सकते। कोई नहीं चाहता वो चीज, किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए। क्या वो प्रोडक्ट आप बेच पाओगे? नो, नॉट रियली। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि whenever you are planning this, please make sure, just give me a minute. Yeah. So अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट, कोई मार्केट ऐसा है जहां पे कोई प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, आई एम गोइंग टू सेल इट, और पे लोग नहीं घूमते, मुझे बेचना है वहां पे, नो यू कैन नॉट डू इट।
कोई भी बड़ा सेल्समैन आ जाए, कोई भी बड़ी कंपनी ओनर आ जाए, डजेंट मैटर, डिमांड आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. यू नीड टू नो हु इज बाइंग एंड वेयर आई कैन बाय द, वेयर आई कैन सेल द प्रोडक्ट्स बेस्ट. लोग कहां खरीदेंगे, वहीं पे जाके मुझे बेचनी है. मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जहां पे दुनिया में किसी को कोई जरूरत ही नहीं है और वो प्रोडक्ट में बना के बैठ गया. Either too early to the market or too late to the market is going to kill your business. Right time is the right strategy to be in the business. आपको आज के टाइम पे जो चल रहा है, सर 200 साल के बाद जो चाहिए होगा ना, वो प्रोडक्ट में आज बना के बैठ गया नहीं हो, वो तो 200 साल के बाद ही आएगी. अभी जो प्रोडक्ट बिक सकती है वही चीज आपको लेके आना है. यू अंडरस्टैंड दैट? द ओनली प्रोडक्ट सिलेक्शन का बेसिक स्ट्रेटेजी यही रहेगा, खरीदेगा कौन, why I am selling this product, whom I am selling this product, and where I am going to sell this product. These are the self questions that you need to ask before doing any product selections. Am I clear? Sir, how do I get to understand what is the product demand? You tell me what you buy. Sell the same thing. आप जो खरीदते हो उसी को बेचना है. सिंपल सी बात है. अगर आपको नहीं पता उस दुनिया में क्या बिकता है या खरीदते हैं, go travel that country, understand what they buy, why they buy, at what price they buy, you get to know it. Sir, इतना पैसे नहीं है. Go online, go to their country's website, वहां पे जाके देखो. The more positive reviews, the more negative reviews, it means that there is a demand for that product. इतना तो कर ही सकते हो. Yes or no? A good strategy to select the market or understand the demand. Yes or no? Right product, if you agree. यस, एंगेज रखो. वरना क्या होगा ना कि मैं तो, आप तो मुझे देख रहे हो, मैं तो सो नहीं रहा, बट मुझे कैसे पता चलेगा आप सो नहीं रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू. राइट? थोड़े एंगेजमेंट रखिए. प्रोडक्ट परफेक्ट, परफेक्ट. यस यस, ओके, गॉट इट. सो यहां पे व्हेन यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट कम्स फर्स्ट. आपके पास क्या प्रोडक्ट है और कहां पे बिक सकती है, ये बाद की सवाल. आप क्या बेचोगे, ये आपको पहले आना चाहिए. सर मुझे ना बायर आने दो. Let the buyer comes first. Let him say what he needs. I'll give him. कभी आप ऐसे कोई शॉपिंग करने गए हो क्या? अरे हाँ, जाते हैं, देखते हैं, जो भी मिलेगा उठा ले आते हैं. और यू हैव अ पर्पस. अब जब खरीदने जाते हो, यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर मॉल और अ पर्टिकुलर स्टोर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. कभी ऐसा होता है कि घर बना रहे हैं, सीमेंट लेने के लिए आप मेडिकल शॉप में जा रहे हो? नो, राइट? आप मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल शॉप पे जाओगे और सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेने के लिए यू गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉप. राइट? सीमेंट की जहां पे दुकान होती है वहां पे सीमेंट खरीदते हो, मेडिसिन जहां पे लेनी होती है वहां पे मेडिकल पे जाते हो. राइट? तो ये बेसिक कॉमन सेंस होती है. कभी भी ऐसे कभी ये मत सोच लेना कि बायर आएगा, वो बताएगा उसको क्या चाहिए. क्यों बायर आपके पास आएगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं? Why do a buyer come to you when you don't have anything to sell? Buyer, when he goes and search on Google or searches on anywhere or any marketplace, he searches for a particular product. He doesn't say that, okay, what Rohit has. ऐसे कभी देखा है क्या? रोहित भाई आपके पास क्या मिलता है, बोलो ना, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं. Until he knows मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हूं, मैं रियल एस्टेट में हूं, मेरे पास गाड़ियां हैं. He knows it, मेरे पास गाड़ियां हैं, तो वो बोल रहा है रोहित भाई आपके पास क्या है, बोलो. मतलब क्या है, मतलब कौन सी गाड़ियां हैं, बोलो. तो उसके पास एक क्लियर आउटलाइन तो रहेगा परचेज करने के लिए. अगर वो नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो ये आपको ध्यान में रखना है. राइट? तो फाइंड बायर्स. जब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट बनी है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये उसके लिए मुझे मार्केट ढूंढनी है. एज सिंपल एज ये क्या है, कोस्टर्स है जो आप चाय कॉफी टी रखने के लिए काम आता है. राइट? तो ये बना किससे है? भूसे से, राइस वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल है, कोई केमिकल नहीं है. इट हेल्प्स यू टू व्हाट आई विल से वेस्ट रिड्यूस करने के लिए, और उससे एक प्रोडक्ट बन सकती है. कब भी बनता है, बट दिस इज वन विच इज गोइंग टू हेल्प यू. तो ये आप टी कॉफी अपने टेबल पे जब भी आप कुछ रखते हो, सो उसका मार्क ना पड़े, यू कैन कीप दिस. ये मेरी प्रोडक्ट है. क्या इसका डिमांड है आज के टाइम पे? हाँ, अगर मैंने खरीदा है तो लोग भी खरीदेंगे. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर मैंने इसको जिससे भी खरीदा है तो क्या इसका कोई वैल्यू है? अगर वैल्यू नहीं होता तो मैंने नहीं खरीदना होता. तो मैंने खरीदा है तो मतलब वैल्यूबल है. अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बिक सकती है
तो क्या इसका प्रीमियम वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और अच्छे प्राइस पे बिक सकती है? यस और नो? गाइस गिव मी यस और नो ऑन द चैट बॉक्स प्लीज. यस? समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क. If you're not able to understand or digest what I'm saying, please ask. Or if you want more Hindi or more English, please let me know. Got it. Okay. So if this products can be sold, तो मुझे इतना कंपनी बनानी है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में डील करती है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, आई एम सेइंग वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसमें मैं स्ट्रॉज डाल सकता हूँ, बैम्बू स्ट्रॉज है, स्टील स्ट्रॉज है, जो नॉर्मली विच इज गोइंग टू रिप्लेस. और यहाँ पे मुझे क्या प्लेस करनी है? आई एम द एनिमी ऑफ द प्लास्टिक. तो प्रमोट मुझे ऐसे ही करना है. तो जो लोग ये प्रोडक्ट समझते हैं उनकी मार्केट कहां पे है? द पीपल हु से नो टू प्लास्टिक, जो एनवायरमेंटली अवेयर है. ये कौन है? यूरोपियन मार्केट है, यूएस मार्केट है. ट्रंप नहीं है, बट समवन एल्स आर देयर हु सेज लाइक ओके, नो टू प्लास्टिक, लेट्स गेट अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट इट इज. ये इसको आप तोड़ के मिट्टी में डाल दो, यू पुट अ सीड, योर सीड विल ग्रो. क्योंकि इट्स ऑल जस्ट राइस वेस्ट, राइस हस्क, दैट्स इट. इट्स मेड ऑफ राइस हस्क. सो दिस कैन बी यूज्ड, राइट? व्हेन आई नो, अभी मुझे पता है ये प्रोडक्ट है मेरी, अभी मुझे पता है इसकी सेंसिटिविटी आपको यूरोप और यूएस में मिल जाएगा. नाउ कैन आई फाइंड समवन देयर? कैसे ढूंढूंगा मैं? आई यूज सोशल मीडिया, क्योंकि दैट्स द चीपेस्ट ऑप्शन. क्योंकि मैं वहां पे जाके ट्रेन पे या प्लेन पे जाके मैं बेच नहीं पाऊंगा. दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट. एक तो लेके जाने में परमिशन लगेगी, क्वांटिटी ज्यादा लेके नहीं जा सकता, एक एक पीस मुझे बेचना नहीं है. देन यू हैव टू सेंड इट इन बल्क. When you have to sell it in bulk, then you have to find the buyer who is buying in bulk. That's what it works. And where do you find this set of people? Online. There are websites, there are tools, there are shops which you can search and find them. Okay? Can you go and search for JB Experts on Google? Just do that. जाके गूगल पे आप सर्च करिए. कैन यू जस्ट गो एंड सर्च फॉर JB Experts? मिल जाएगा क्या? देख के मुझे बताना प्लीज. Write JB in chat box if you find JB Experts on Google. Yeah? Yes? Yes? अभी आपने जैसा JB Experts सर्च किया, अगर आपको पता चल जाएगा कि there is some company whom you can search and get their details, तो ऐसे काफी सारी कंपनीज हैं जो who want to be discovered. एक तो आप उनको ढूंढते हैं और वो आपको ढूंढते हैं. In both situations that is possible. So please make sure you are visible, तो आपको वहां पे मिल जाएगा. You will be able to find the buyers just by Google search, just by the basic tools. You don't need a fancy stuff there. हाँ, अगर थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, you have a lot of tools to do it. But अभी फिलहाल के लिए इतना मान के चलते हैं कि this is something that we can work through, right? तो negotiable prices. जब आपको प्रोडक्ट मिल गया, this is a product, Europe is my market, और मुझे वहां पे किसी ग्रीक या फ्रांस या मिलान या इटली में कोई मुझे बायर मिल गया. अभी देन व्हाट? आई नेगोशिएट द प्राइसेस. हाउ मच आर यू गोइंग टू पे फॉर मी? क्योंकि मुझे ये 8 रुपए में बन सकता है. क्या मैं उसे 8 रुपए मांगूंगा? नो, आई नीड टू मेक मनी. सो हाउ मच आई कैन मेक मनी? आई नीड टू सी हाउ मच इट इज बीन यूज्ड, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन आई से लाइक ओके गिव मी 10. नो, आई डोंट डू दैट. मैं उस मार्केट में कितने में मिल रहा है, आई डू दैट एनालिसिस. उस मार्केट में ऐसे ही नॉट सिमिलर बट समवॉट सिमिलर प्रोडक्ट अगर 2 यूरोज में बिक रहा है, देन व्हाट आई आस्क फॉर दिस? 2 यूरोज. एज सिंपल एज दैट. भले मुझे 8 रुपए पड़ता होगा, इट्स नॉट इवन अ यूरो, बट अगर वहां पे 2 यूरो पे बिक सकता है, देन व्हाई शुड आई आस्क फॉर 8 to 10 रुपीज? मतलब नहीं बनता. व्हाई टू स्पॉइल द मार्केट? तो इसलिए आप क्या करोगे? $2 इस पे भी मांगोगे. देन यू से कम ऑन मैन, $2 में मुझे यहां पे भी मिल जाएगा. ठीक है, थोड़ा कम करते हैं. हाउ मच इज दैट? 5%, 2%, 8%, 10%. दैट इज ऑल व्हाट यू गो डाउन. तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे हाउ टू शिप इट, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी. दिस इज ऑल एग्रो. तो एग्रो में पैथोसैनिटरी लगेगा. सो गेट इनटू डेप्थ ऑफ सर्टिफिकेशंस. एक बार उसको भी पूछ सकते हो, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस दैट यू नीड इन योर कंट्री टू सेल माय प्रोडक्ट देयर. सो गेट दोस डिटेल्स, प्लान इट अकॉर्डिंगली, एंड देन शिप द प्रोडक्ट.
नहीं पता, there are tools which is going to help you to get to understand what is the certification, what is the documentation that you need for that particular market. तो उसके accordingly भी आप plan कर सकते हैं. Okay, so product selection के लिए you use Amazon, market finding के लिए you use B2B portals in that particular market, buyer finding के लिए again B2B tools in that market, price negotiation के लिए you can see all the B2C websites where your products can be purchased. अगर हो सकता है use VPN, प्रोडक्ट का ले लीजिए, या देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट हु गिव्स यू द VPN, जस्ट सर्च फॉर VPN, यू विल गेट इट. तो जो भी VPN आप यूज करके यू कैन चेंज योर IP, एंड जो भी आप सर्च करोगे उसी कंट्री के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा. अगर आप इंडिया में बैठ के सर्च करते हो तो इंडिया की वेबसाइट मिलेगी. जस्ट सर्च फॉर दिस कॉफी नियर मी. कौन सा लोकेशन पे कॉफी दिखेगा? द नियर यू. अगर आपने IP एड्रेस फ्रांस पिक किया है, देन व्हाट इज द कॉफी शॉप्स यू आर गोइंग टू गेट टू सी? नियर Paris or France, whichever city you pick, right? तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. VPN यूज करोगे तो वहां की आपको सारे वेबसाइट दिखने शुरू हो जाएंगे, वहां के B2C दिखना शुरू हो जाएगा, B2B दिखना शुरू हो जाएगा. देन जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग फॉर द वेबसाइट्स. ओके, देन उसके बाद जो भी आपको शिप करना है, यू फाइंड द बायर, उनसे बात करना शुरू करिए. इफ लैंग्वेज इज अ बैरियर, यू कैन यूज ट्रांसलेटर्स. इफ ट्रांसलेटर्स आर एक्सपेंसिव, बेटर यू डू यूज अ चैट. आज के टाइम में काफी सारे AI टूल्स हैं which gives you a live translation, but they are not that great. कभी कभी आपकी प्रोनाउंसिएशन वो कैच नहीं करेगा, गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देगा. इवन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो हमने फेस किए हुए हैं. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर हो सकता है जस्ट टाइप इट एंड चैट, इवन दैट इज ऑल्सो वर्थ इट. ओके, एंड मेक श्योर वहां पे व्हाट्सएप काम करता है या नहीं करता, ये भी आप देख लेना. ठीक है, सो यू स्टार्ट अ ट्रेडिंग कंपनी विदाउट अ फैक्ट्री. की इनसाइट तो यही है, ये सब चीजें करने के लिए ये मैंने बनाया नहीं है. ये प्रोडक्ट मैंने बनाया ही नहीं है. मेरे पास ना राइस हस्क है, ये बनता कैसा है ये भी नहीं पता. और एंड ऑफ द डे मुझे ये पता है ये बायोडिग्रेडेबल है, बना ऐसा है, और ये कंपनी मुझे बना के दे सकती है. भले ही मुझे 8 रुपए पड़ रहा हो, उससे तो 4 रुपए पड़ता होगा. ठीक है, आई एम ओके स्टिल. अगर मुझे $2 पे बिक सकता है, देन आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. राइट, कोई एनजीओ बनाती है, दैट्स द कॉन्सेप्ट. ओके, एंड अगर एनजीओ इमोशनल कर सकते हो, देन इमोशन इज अ बिग की फॉर सेल्स. द मार्केटिंग एक्सपोर्टर, द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और अ मर्चेंट एक्सपोर्टर. ये प्रोडक्ट जो एनजीओ बनाती है, अगर वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो मुझे देके मेरे से एक्सपोर्ट करा सकते हैं, वो द ऑप्शन इज देयर. अगर वो करेंगे, दे आर मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर. अगर मैं करूंगा, आई एम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर. दैट्स अ डिफरेंस. ओके, उनकी अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है. दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स ब्रेक द मिथ. काफी लोगों को कुछ और सोचते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स इनटू माइंड. सर, डू आई नीड अ फैक्ट्री? जैसे मैंने आपको बोला, मेरा इसका फैक्ट्री नहीं है, बट मैं माल मेरे हाथ में खड़ा है. आई हैव ऑलरेडी सोल्ड दिस, तो मैं आज भी बेच पाऊंगा. तो डू आई हैव अ फैक्ट्री? नो. फिर भी मैं ये बेच सकता हूं. So that is something that exactly what you need to do. आपके पास फैक्ट्री होने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ट्रेडिंग कंपनी होगा. विदाउट मैन्युफैक्चरिंग यू कैन स्टिल एक्सपोर्ट. यू नीड क्रोर्स टू स्टार्ट. ये 8 रुपए का माल है. अगर ये 8 रुपए का माल है, ऐसे मुझे अगर 1000 पीस भी चाहिए तो कितना खर्चा हो जाएगा मेरा? 8000. और मेरे सैंपल भेजने के लिए मुझे उसको 10 या 20 पीसेस फ्री में देने पड़ेंगे. उसके ऊपर मुझे करीब करीब ट्रांसपोर्टेशन का मान के चलो, अगर इंडियन पोस्टल सर्विस कैन बी अराउंड 3000. ये तो सस्ता है, मगर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक महंगा है. तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसमें भेज दो. तो जब उसको ये हाथ में आएगा, उसको लगता है कि हाँ दिस इज वर्थ इट, और यार बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एंड आई कैन गिव यू अ ब्रांड ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांड है, तो ये ब्रांड मैं वहां पे छपवा के दे सकता हूँ. देन या व्हाई नॉट? उनके लिए मार्केटिंग मटेरियल हो जाएगा. दे कैन यूज इट फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. उसको मैं आइडिया भी दूंगा कि ये प्रोडक्ट आगे कैसे बेचना है. सो इफ आई एम एबल टू कन्विंस हिम, तो बिना कोई करोड़ों रुपए डाले हुए 8 रुपए का माल है, अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिला के मुझे इसको डिवाइड करके मुझे उसको बेचना ही है, तो इफ आई सेल इट अराउंड 10,000 पीसेस एट 3,000 or 4,000 rupees extra on the logistics, having a good amount of money. तो ये आप कैलकुलेट कर लो. इट कुड बी इन अ सेट. ओके, एक एक पीस तो नहीं जाएगा, 6 पीस, 8 पीस, 10 पीस, 4 पीसेस, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली स्केल. कम से कम 6 का ही सेट बनती है, 6 or 12. ओके, exports are only for the big companies. We are not so big. We are working with the companies who are not big. We are working with the companies in Coimbatore.
We are working with a small Tamil company who don't even speak any other languages apart from Tamil. He's a farmer. He's been in the coconut industry all his life. He can just tell me just by like hitting on the coconut industry, like, okay, it's good, it's bad, it cannot be exported, it can be exported, the size is good, the color is good. He knows product. मगर उसको he doesn't speak apart from Tamil. तो करेगा क्या? He will tie up with the companies like us. उनके लिए हम काम करना शुरू करते हैं. And we started working with him when he had just a single shop. उनके पास कोई ऑफिस भी नहीं था, छोटी सी दुकान थी, वहां पे लोकल में वो कोकोनट में काम करते थे. That's all what he had. आज he is doing more than 7 to 8 containers from Palachi to the GCC markets. Yeah, obviously we are going to being affected by that, but still it works. वो MSME कंपनी है, दिस इज वेरी स्मॉल कंपनी, फार्मर रजिस्टर्ड था. देन इवन जीएसटी तक हमने बनाया, जीएसटी तक भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज यू एंड वी नो जीएसटी का कोई जरूरत नहीं पड़ता इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. अगर आप फार्मिंग करते हो तो जीएसटी की जरूरत नहीं. सो 45% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स आर थ्रू मर्चेंट्स, या छोटे मीडियम स्केल वाले ही करते हैं. सो कंसिडर दैट इट्स अ गुड नंबर. ओके, फाइंडिंग बायर इज इम्पॉसिबल. लिंक्डइन है. If you message me on LinkedIn, just open a LinkedIn account. It's very free. उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे. If you buy Sales Navigator and other thing, थोड़ी महंगा आपको लगेगा. But initially to open a LinkedIn account, you don't need anything. अगर आप 200-300 LinkedIn invitation एक दिन में भेजते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक होगा. Just keep a decent number. 20 connections a day is a good number. तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो क्या मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा if I am hungry to the business? Obviously I do. तो लिंक्डइन पे मैं एंगेज करता हूं, मैं चैट करता हूं, लोगों से बात करता हूं. आई हैव अ होल टीम डिप्लॉयड फॉर जस्ट टू हैंडल माय लिंक्डइन प्रोफाइल. तो ये चीजें आप भी कर सकते हो. देयर इज नो बिग डिफिकल्टी दैट. आपको लिंक्डइन पे मैं आप जिस भी कंट्री का या जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप बोलोगे, आई कैन फाइंड द पीपल. दे विल बाय और दे डोंट बाय, दैट्स आई एम नॉट सेइंग. मैं ये बोल रहा हूं वहां पे बायर मिलेंगे. वो आपसे आज खरीदेंगे, मे बी नॉट, मे बी कल, परसों, कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा. बट B2B प्लेटफॉर्म्स, ट्रेड शोज, मल्टीपल चैनल्स. अगर मैं मल्टीपल एक मोनो चैनल पकड़ के मैं बोलता हूं कि सर दिस रूट डजंट वर्क, बट हु सेड टू वर्क ओनली ऑन वन रूट? यू कैन ट्राई मल्टीपल लाइंस. नो, सेम टाइम आप ईमेल भी कर रहे हो, आप लिंक्डइन भी कर रहे हो, आप व्हाट्सएप भी कर रहे हो. एंड इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेड शोज, यू आर इनवाइटिंग देम, यू आर कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम दैट आई एम कमिंग, सो प्लीज वॉक इन, जंप इन टू द मीटिंग. इज इट डिफिकल्ट? इज इट रियली डिफिकल्ट? नॉट रियली. लोगों को बड़ा बना के रखते हैं एंड पीपल थिंक दैट ओके. कभी एक बार मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शन भेज दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, सो आई थिंक लाइक ओके, नहीं यार वो लिंक्डइन काम नहीं करता. एम्बेसी का डेटा ले लिया, पता नहीं उसका क्या करना है, और लेके बैठ गए. उनको कभी एक बार ईमेल कर दिया एंड देन आई थॉट लाइक ओके, दे डोंट रेस्पॉन्ड. जो एम्बेसी डेटा काम नहीं करता. सेइंग दैट समथिंग डजंट वर्क इज वेरी मच इजी, बट यू हैव नॉट वॉक थ्रू द रोड. You can't tell that what is end in the destination. आखिर में आपको क्या मिलने वाला है ये आप पहले शुरू भी नहीं किया चलना. एक दो कदम डाला, फिर बोल दिया यार ठीक है अभी धूप है, मैं नहीं चलने वाला. नहीं होने वाली है. That's the mindset. Documentation is complex. आपको 30 मिनट नहीं लगते हैं समझने के लिए. Just Google it, ask your buyer, पता चल जाता है. उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. There is a website called ITC Market Access. Just write it down. या ये वीडियो में आपको बाद में भी पता चलेगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केट एक्सेस. वहां पे आपका एचएस कोड डालो, आपको ऑटोमेटिकली जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी चीजें हैं वो आपको मिल जाए. या जो कंट्री में आप बेचना चाहते हो उस कंट्री में जाके उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी कस्टम में आप अगर आप चेक करोगे ना एचएस कोड के सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भी आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा. अगर कुछ नहीं है गूगल कर लो. आज एआई के जमाने में है, गो एंड यूज एनी एआई टूल. चैट जीपीटी यूज कर लो. you'll get to see what are the documentations that you need. प्राइमा फेसी तो मिल ही जाएगा. एडवांस जो है वो पर्टिकुलरली आपको लगेगा नहीं लगेगा, that is your buyer will confirm when you have a negotiations. Sir, how do I get to know whether the documentation is required or not? क्या ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है? देखो आपने बायर तो ढूंढा है ना, you have the buyer to talk, तो उससे पूछ लो. If he needs that, अगर वो जेन्युइन है, he will help you out. वो ये भी बोल देगा कि क्या डॉक्यूमेंट है, कितना डॉक्यूमेंट का खर्चा लगेगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह. एंड एक बार आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट बन गया, यू कैन सेल इट टू एनीवन. अगर कुछ भी नहीं है, हमारा नंबर है ना आपके पास, हम बता देंगे आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी. इज इट सो डिफिकल्ट?
ओके, सो वेयर वी स्टार्ट विथ एज अ कंपनी इन इंडिया, हम कहां से शुरू कर सकते हैं? वन, वी कैन स्टार्ट विथ सेइंग योर प्राइमरी, आप लोकल और इंटरनेशनल में फर्क कैसे होगा? जीएसटी उसके पास भी है, मेरे पास भी है. अ लोकल कंपनी हैज अ जीएसटी, इवन आई हैव इट. सो व्हाट इज द बिग डिफरेंस हियर? आईईसी. ये वही लोग अप्लाई करते हैं या वही लोगों को मिलता है जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं. विदाउट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डू इट. आपके पास जीएसटी पहला होगा, देन यू गो बैक, ओपन योर आईसी कोड. आईसी कोड एक 10 डिजिट का कोड होता है जो डीजीएफटी से मिल जाएगी. गो एंड सर्च फॉर डीजीएफटी पोर्टल, यू विल गेट इट. वहां पे जाके आप आईसी के लिए अप्लाई करोगे. यू हैव बेसिक डिटेल्स होगी वहां पे, बैंक डिटेल्स, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें डालनी होगी, जस्ट एंटर इट एंड यू विल गेट योर आईसी. एंड हु नीड्स इट? Every individual and a company who is dealing in international business, they need it. Got it? So apply online, dgft.gov.in. 2 दिन 3 दिन is a old time. अभी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है. अगर अप्रूवल इमीडिएटली ऑटो पे हो सकता है, देन इट विल बी डन इमीडिएटली. आपको 2 मिनट में डाउनलोड भी कर सकते हैं. 2 दिन 3 दिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ओनली इफ कोई चीज वेरीफाई नहीं हो रही है, देन इट मे टेक टाइम. डॉक्यूमेंटेशन नीडेड क्या है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक सर्टिफिकेट या कैंसिल चेक या पासपोर्ट का एक फोटो, जस्ट अपलोड इट. ओके, अगर आप ये वीडियो कभी और टाइम पे देखोगे, इवन बाय द टाइम आधार कार्ड से भी आपका फोटो निकल जाएगा, देन यू डोंट इवन नीड टू अपडेट योर फोटोग्राफ्स. ओके, कॉस्ट 500 रुपए गवर्नमेंट का फीस है. अगर आप मेरे से बनवाओगे या किसी और से बनवाओगे, मे बी 2000 रुपए चार्ज कर लेंगे. द अमाउंट व्हाट यू पेड फॉर द कोर्स, यही चीज का आपको उतना ही खर्चा पड़ सकता है. एंड मोर ओवर, लिंक आईसी एंड एडी कोड टू द बैंक थ्रू आइसगेट. आइसगेट एक दूसरा पोर्टल है जहां पे आपको सारी बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ शिपमेंट जो भी है उसी में आपको काम करना है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू रजिस्टर. मगर ये सब चीजें आपको थ्रू लिंक करके चलना पड़ेगा. वंस यू डू इट, एक पूरी साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन यू आर गुड टू गो. नाउ आपके पास पूरा बेसिक सेटअप तो रेडी है, उसके बाद का कोई चैलेंज आपके पास है नहीं, राइट? तो रजिस्ट्रेशन आईसी के बिना काम होगा? नो, इट कैन नॉट बी डन. जीएसटी के बिना काम होगा? नो, डजंट मैटर. काफी लोगों का ये मानना होता है, सर जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड until we reach 20 lakh or 40 lakh of threshold. Only then we need to get the GST registration. But that is for your domestic business. But when you are entering international business, GST is the first thing that you need. Without this, there is no export happening. Without this, you are not going to get IEC. Without this, you are not going to get a bank account. Without this, you are not going to get an international remittance. So, GST is mandatory. You cannot skip it. Get this thing first. Then go for IEC. Then go for bank account. Then go for AD code. Then go for IceGate. These all comes into picture. Got it? GST खुद करोगे तो फ्री है. अगर मैं करूंगा 2000 रुपए लगेगी. मैं मतलब any CA to that matter at a good service if I say. AD code registration बैंक फ्री में नहीं मिलेगा. You have to pay them. बैंक का कोई फ्री में तो कुछ काम होता नहीं है. You have to either keep 10,000 or 20,000 or 50,000 or 2 lakh, 1 lakh, 5 lakh, whatever it is. Pay that, keep it, open the account and then use it. So, do you recommend any bank? Yeah, I recommend ICICI Bank, HDFC Bank, or any other good private banks. Don't go for government banks. Only if you want the government funds, or what I would say, if there is any government family relation, or my brother is in Bank of Baroda, okay, then go and open it. But if you have no one, then the government entities are not my choice. I don't prefer them. So go and work with private banks. It will be a bit faster for you, so that at least one email you can get a response. With government, I don't know whether they do it or not. Okay. Then RCMC, go with Kotak Bank, ICICI Bank, IDFC Bank, and there are IndusInd Bank, so on and so forth. Depends which branch. Again, you deal with the branch, you don't deal with the bank. आपका कौन सा ब्रांच अच्छा है, you pick it up. क्या होता है ना, आईसीआईसीआई बैंक मेरे यहाँ पे ब्रांच अच्छा है, ब्रांच मैनेजर अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, रीजनल मैनेजर अच्छा है, तो ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है. बट काफी बार क्या होता है ना, आपके यहाँ पे वो बैंक के ब्रांच ना उसको दिमाग है, बदतमीज है, जो चीजें पूछा जाता है वो उसके रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है. देन इन दैट केस यू आर इन अ प्रॉब्लम. तो वहां पे जो ब्रांच अच्छा है वो ले लो. जब तक वो अच्छा है काम करो, अगर नहीं है तो चेंज करो. सिंपल सी बात. ठीक है. If your girlfriend is not good to fit as a wife, then what do?
you break up, you change your partner. That's how it is. That's how you do with the banking system. RCMC, this is recommended. Nowadays, what I say is it's mandatory also. Okay, so depends how many years of RCMC you need, what product you need, and all of it. Okay, RCMC is registration cum membership certificate. This can gives you for a particular product. Coffee के लिए coffee board है, टी के लिए टी बोर्ड है, सिल्क के लिए सिल्क बोर्ड है. For every particular commodity you have a board. For coconut you have cocoa board, coir के लिए coir board, jute के लिए jute board, right? Slippers के लिए, footwears के लिए. Do you have any export promotional councils for that? Footwears के लिए. No. Yes, you have it. कौन सी footwear की EPCs है? If your footwear is made of chemical, then you use chemical EPC, which is Chemical Export Promotional Council. Or if it made of leather, then you go for Leather Export Promotional Council. तो इनको छोड़ के आपके पास कोई और चारा नहीं होता है. And if you don't have multiple options, then go with few. That's the only thing. Okay? अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में काम करते हो, then FSSAI is required. अगर आप एग्री में काम करते हो, तो APEDA required. APEDA is a Export Promotional Council for agricultural products. 99% of your people are planning for agro products, then consider this. स्पाइस बोर्ड है तो स्पाइस बोर्ड बुक कर लो. स्पाइसेस में जितने भी प्रोडक्ट्स में काम करते हो, सर टी स्पाइस में आता है क्या? आई एम मैन्युफैक्चरिंग स्पाइस टी. नहीं, वो टी में आएगा. दिस इज स्पाइस प्रोडक्ट्स, जो हल्दी, टर्मरिक, चिली, सॉर्ट ऑफ दैट, पाउडर हो, प्रोसेस्ड हो, वगैरह जो भी है, इट कम्स अंडर स्पाइस बोर्ड. ओके, तो कितना खर्चा होगा ये, दीज आर अप्रोक्सीमेट प्राइसेस, कीप चेंजिंग बट कीप दैट. तो आपको यहाँ पे प्रो टिप क्या है? कंप्लीट योर आईसी, जीएसटी, एडी कोड फर्स्ट. उसके बाद जो भी चीजें चाहिए होगा, बिकॉज दिस डजंट कम विद द वैलिडिटी. जीएसटी का वैलिडिटी नहीं है, आईसी का वैलिडिटी नहीं है, या एडी कोड का वैलिडिटी नहीं है, आइस गेट का वैलिडिटी नहीं है, बट आरसीएमसी का तो है, एफएसएसआई का तो है, एपेडा का तो है, स्पाइस बोर्ड का तो है. दीज आर ऑल समथिंग दैट यू डू इट लेटर व्हेन यू हैव जनरेटेड इंक्वायरी. पैसे क्या होता है ना, द थिंग विच कम्स विद द एक्सपायरी, that is something that you need to use it properly. If you're not able to do that, then what is going to happen? By the time you generate your first inquiry with all the hustle and everything, your 6 months are already gone. So ये तो 1 साल के लिए लिया था, 6 महीने चले गए, 6 महीने बाकी है, and that half month, half year, whatever is been gone, it's gone. उसका तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे. Keep that in mind. तो understood? यहाँ पे कोई डाउट है तो लिख के रख लेना. I'll answer it. Okay? So यहाँ पे filters. What is the product selection का filters? यहाँ पे मास्टली कहां पे कर सकते हो? One filter is who is going to buy. Global demand इसके लिए है या नहीं है? Someone says, sir, onion is a great product. There is a huge demand. Perfect. Let's pick onion. ये filter वहां पे पार हो गया. Agreed? Yes or no? Yes or no? ये फिल्टर पे तो पार हो गया, राइट? ग्लोबल डिमांड पे इट इज डन, बिकॉज डिमांड तो है ऑनियंस के लिए. विल कंसिडर दैट. डज इंडिया हैज एडवांटेज? डू वी मैन्युफैक्चर इट? क्वालिटीज, कॉस्ट एडवांटेजेस, सब कुछ है. यस. कॉम्पिटिशन लेवल वेरी हाई, वेरी हाई, बिकॉज इफ नो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स एनीथिंग, ही एक्सपोर्ट्स ऑनियन. अगर कोई एक्सपोर्टर कुछ नहीं कर रहा है तो ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहा है. दैट्स जोक व्हाट्स इन आवर what do you call peer we do. अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, एक एक्सपोर्टर है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, अगर उसने कुछ करना बंद किया है, उसका मतलब यही है कि उसने ऑनियन में काम किया, या वो ऑनियन काट के रोया या बेच के रोया. सो व्हाट्स इट डू? आप ऑनियन कैसे देख रहे हो? आर यू लुकिंग एट ऑनियंस एज अ बिजनेस या ऑनियन एज अ ट्रबल? तो दोनों चीजों पे इट रिजेक्ट्स हियर. कंपटीशन बहुत हैवी है, मतलब लिटरली इतना हैवी है. द पीपल आर रेडी, द डिमांड इज गुड, द एडवांटेजेस आर देयर, बट द कंपटीशन इज वर्स्ट बिकॉज माय कॉम्पिटिटर्स आर रेडी टू सेल विदाउट एनी प्रॉफिट, नोइंग हाउ मच दे आर गोइंग टू अर्न. उनको पता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, फिर भी वो प्रोडक्ट में काम करते हैं. तो ऐसे मार्केट में मुझे जाना है क्या? जस्ट स्टे अवे.
when you are new, when you are planning to enter the export business, just stay away from this particular thing because this is not going to help you. Am I clear? Compliance simplicity कितनी आसान होनी चाहिए? Sir, you need that certificate. You need a pharma में क्या होता है? You have a medicine, if you have a tablet to sell, but you need to prove that you have done a trial run in. You have government approvals. You have completed trial record. You need to prove that this medicine works and this is not harmful. What is the side effect analysis? What is the allergy analysis? ये सब चीजें आपको properly prove करना पड़ेगा. You need to prepare a complete dossier and then send it to the buyer and then get tested and then get it registered in his country and then you can sell it. Getting that dossier itself is expensive. Getting the products and registering in that market, it's again expensive. And you need to have a whole control of the operation, that is expensive. तो इतने सबके बीच में अगर मेरा ताकत उतना नहीं है, I'm not saying pharmaceutical is bad. Pharmaceutical is a good product, but complexity simple नहीं. Compliances are not simple. The challenges are so huge that a new one who is coming with a very limited resource as a merchant trader cannot enter into pharmaceutical because of this compliance. And even if you plan to enter it, कोई फैक्ट्री होगा, he says like यार हमारा माल बेच दो, हमारे मेडिसिन है ये बेच दो, उनके पास सर्टिफिकेट है क्या ये चेक करो. If they have it, 99.9% they will not have it. तो फिर आपके पास बचा क्या ऑप्शन? You can't sell us. उसके उनके नाम पे आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाओगे क्योंकि मैन्युफैक्चर गेट्स द सर्टिफिकेट नॉट द ट्रेडर. तो देयर इज नो एडवांटेज फॉर दैट. तो ये आपके लिए इट्स अ लॉस मेकिंग डील. और हर एक पैकेज के ऊपर आपको लिखा रहेगा मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय. अगर मुझे किसी का पैकेज मिलती है, इवन व्हेन वी आर इन अब्रॉड, वहां पे कोई भी पैकेज होती है हम उठाते तो अपने लिए है. द ड्रिंक वी यूज इट, चिप्स, कोई भी जो भी चीज है, बट वी ऑलवेज फ्लिप इट. मेरी आदत है फ्लिप करो एंड सी वेयर इट हैज कम. ये जहां से आया, कहां से आया, ये कितने में आया और कौन बना रहा है और कौन बेच रहा है. दैट्स ऑल. टेक दैट स्नैप, सेंड इट टू द टीम, आज इट टॉक टू दिस बोथ द पार्टीज. अगर इसको बेचना नहीं आ रहा, हम दूसरे मार्केट में एंट्री करा सकते हैं. अगर ये बेच रहा है तो इसको बोलो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, तू खरीदने के लिए तैयार है क्या. दैट्स इट. दैट्स वेयर यू हैव द बिजनेस. इज इट सो डिफिकल्ट? Sir, the way you said it so simple, it's not so simple. Guys, it's as simple as I said it. क्योंकि हम वही काम करते हैं. Understood? Okay. अगर समझ में नहीं आया, write it down, ask me about it, I'll answer it. Okay? Exactly हम कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ. ठीक है? Compliance, simplicity and margin. हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं? The first thing what I said, India is not important, what is important is I. इंडिया बाद में आएगा क्योंकि मैं अपना भला करूंगा तो देश का भी भला ऑटोमेटिक होगा. इफ आई एम डूइंग गुड फॉर माय कंपनी, इफ आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, इफ आई एम डूइंग गुड फॉर माई कंपनी, द कंपनीज टैक्सेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड. और जो एक्सपोर्ट में करूंगा उससे इंडियन गवर्नमेंट तो रेमिटेंस तो अर्न करेगा ही ना. दैट्स अ बिग बेनिफिट. इतना ही करना है आपको. देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू. यू डोंट नीड टू डू समथिंग लाइक जैसे होता है ना, आर्मी मैन गोज to the border to fight, to stay, struggle with the climate and all of it. आपको कुछ नहीं करना है. Just take have a laptop, have a system in place, start up with a mic and camera, then you're good to go. That's it. No big hustle there. But if you are not earning 15 to 30% between margins, then you are not fit for export business. आप इतना लिख के ले लेना. Either this is the margin that you need to get, वरना इससे कम तो आपको डोमेस्टिक में मिल जाएगा. क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? Why you are sending so far away to a different country and taking that much of minimum profit? That you can do it even in Indian market. But some people have the answer for this is volume. I cannot sell it in bulk containers, but I can do it in international market. The margins are less, agreed, but volume is also there. So think over it, what makes sense. So this is a snap that you have to go through. Okay, am I clear? Agriculture and spices. क्या करना चाहिए विच इज हाई डिमांडिंग? टर्मरिक, राइस, टी, मोरिंगा. मोरिंगा के बारे में मैंने इतने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच इट. इट्स ऑन यूट्यूब, फ्री में है. जाके जब भी आपको टाइम मिले मोरिंगा के बारे में समझ लो. टर्मरिक के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुआ है. राइस एंड टी मैंने बनाया नहीं है, बट आई विल डू इट सून. बट एक बार देख लेना.
Just focus on this. Textile, apparels पे काम करनी है, cotton है, we are already doing good. Garments है, home textiles है. Think of it. Growth medium है, but consistent growth है. कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, that's all the basic concept is. Everyone needs it. Even the people who are fighting in a war, even that makes sense. That's also something that you can take care. Pharma and herbs, Ayurvedic, generic, supplements, high. FMCG, food products. यार चिप्स कितना खाया आपने? अभी भी अगर आप इफ यू आर नॉट सो हेल्थ कॉन्शियस, अभी भी आप कुछ ना कुछ तो खा रहे हो, बिकॉज नो वन इज वॉचिंग यू. खाना खा रहे होंगे बिकॉज इट्स द राइट टाइम टू ईट फूड, राइट? स्नैक्स, सॉसेज, रेडी टू ईट, गरम करो खा लो. इफ यू आर बैचलर, मैगी बना लो, राइट? दैट्स व्हाट इट इज. हम तो शादी के बाद भी मैगी बनाते हैं, so there is nothing to that. So if you are technical background, engineering है, automobile पे आपको काम कर, you know it, or you have a family business or something, or you have someone whom we can help you with, or you have worked in that industry, I'm being in that industry, I can sell that product. No problem. Fasteners are there, components are there, tools are there. You can just look into that. Then handicraft है. We are working this with the NGOs. These are all handicraft companies, small companies. The ladies does it. तो आप देख लो, even if you can do this. Brass है, wooden है, ceramics है, jute है. So you can work with small people, small companies, small margins are good, but end of the day, it's worth effort. So these are all the products that what India stands. हम अच्छा सब में करते हैं. There is nothing that एक या दो product पे करना है. Sir, let me pick this industry and then go deep into it. करो. Okay? Any doubts? Write it down. I'll answer it. Okay? So now comes the HS code. यहाँ पे थोड़ा attention चाहिए. ओके, कंप्लीट अटेंशन. अगर आप कुछ कर रहे हो तो प्लीज छोड़ दीजिए, वॉच इट. HSN कोड अगर गलत होता है ना, इफ यू डू जस्ट मेस अप अ रॉन्ग नंबर, इट्स जस्ट लाइक हाउ डू आई पुट इट एज योर रोल नंबर ऑन योर 10th और 12th और एनी बोर्ड एग्जाम. आपने गलत नंबर लिखा एग्जाम पेपर पे, व्हाट हैपेंस? यू आर डन. एग्जाम तो फेल हो गए. अगर फेल भी नहीं हुए तो एक रोल नंबर पे दो पेपर दिख रहे हैं. विच वन इज योर्स? क्योंकि आपने गलत लिखा है. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर इट आउट. तो यहां पे क्या होगा? दिस इज जस्ट अ नंबर फॉर योर प्रोडक्ट. ये आपका प्रोडक्ट का रोल नंबर है. अगर आपने यहां पे गलत नंबर लिखा तो ये टैरिफ बदल जाएगा. अगर इफ यू इंटेंशनली वांट टू चीट, होता है ना सर, इसमें वी हैव 30%, कैन आई डू इट एट 10% वाला एचएस कोड? कर दो. जब वो इंस्पेक्ट करेंगे तब उनको पता चलेगा दिस इज नॉट दिस, दिस इज दैट. तो वहां पे 30% तो लगेगी, और आपका डैमेज चार्जेस, आपका डिले वगैरह वगैरह, इट विल ऑल हिट यू. So why do you want to do that? That's a challenge what you need to figure out. So first 6 digit is the international standard. Next 2 digit is the country standard. Even sometimes some countries have additional 2 more digit. That is again country specific. Am I clear? 6 digit standard होगा. ऐसा होता है ना, what do you say, your institutional code, your departmental code, then your personal code, something like that. ये combination होता है. Any roll numbers or any, अगर पढ़े लिखे हो तो पता चल ही जाता है, राइट? सो अगेन, अगर नहीं पढ़े तो भी ठीक है यार, इतना मान के चलो कि मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए. अगर एक नंबर गलत हो गया तो किसी और पे फोन जाएगी, लड़की के बदले उसके पापा पे. सो बी केयरफुल ऑन दैट, राइट? तो फ्री टूल्स यू मस्ट यूज. विच वन इज दैट? जो मैंने आईटीसी मार्केट एक्सेस बोला, तो समथिंग सिमिलर टू दैट इज ट्रेड मैप, बट these are not depth. यहां पे अगर आपको डेप्थ देखना है, you can do only for 6 digit. That's all what you can do. एक अगर आप मान के चलो, only I search for an institutional code. Institutional code में कितने बच्चे होते हैं? अरे एक यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होते हैं? How do you talk to me? अगर मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं पता, पहले चैप्टर आएगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक आएगा, देन स्पेसिफिक गोज ऑन. तो पहले कॉलेज, उसके बाद पहले यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद कॉलेज, उसके बाद डिपार्टमेंट, और उसके बाद लुकिंग आउट फॉर मी. दैट्स हाउ इट शुड बी. तो ये चीजें वहां पे उतना डेप्थ में नहीं जाएगा, बट स्टिल फ्री है, फ्री अकाउंट इज अवेलेबल, तो आपको ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. एंड मार्केट जीनियस, बायर सप्लायर डेटा, यू गेट इट इन मार्केट. सस्ते में मिल जाएगा, 1800 रुपए में मिल जाएगा, 1200 रुपए में मिल जाएगा, 500 रुपए में मिल जाएगा फॉर ऑल डेटा.
If you want a new one, you may get it for 1800 or 1200, something like that. Or if you say that, okay, I want a whole tool, 2 लाख में मिलता है, लेना है तो ले सकते, राइट? फिर उसके बाद डीजीएफटी आता है. डीजीएफटी में काफी सारे पॉलिसीज है, एचएस कोड्स है. जस्ट मेक श्योर, इसमें भी 3 तरीके की कैटेगरी आती है. आई हैव नॉट रिटन हियर, बट यू राइट इट डाउन. वन इज फ्रीली एक्सपोर्टेबल, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड स्कॉमेट. दीज आर मेनली तो 3 होते हैं. एक एक्स्ट्रा प्रोहिबिटेड तो आप कोई भी नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट करेगा ना आप करोगे, तो प्रोहिबिटेड छोड़ दो. तो आप कौन सी 3 चीजों में काम कर सकते हो? वन इज फ्रीली एक्सपोर्टेबल, जिसमें हमें काम करना है. सेकेंड वन इज प्रोहिबिटेड, अगर आपको थोड़ा तकलीफ लेके ना थोड़ी मजा ज्यादा लेना है, देन प्रोहिबिटेड, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड. द थर्ड वन इज कॉमेंट, जिसमें if you want, you can make a good product or a medicine from it. If you want to, with the same thing, you can make even poison. आप इंसान को बेहतर भी कर सकते हो और इंसान को मार भी सकते हो. बेसिकली आप डिटर्जेंट बना सकते हो या बम बना सकते हो. दैट इज द ड्यूल यूज ऑफ द प्रोडक्ट. अगर जहां पे भी आपको ड्यूल यूज आती है, विच इज स्कॉमेट प्रोडक्ट्स, स्कॉमेट की एक लिस्ट मिलती है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट उसमें है, देन यू नीड टू गो फॉर अप्रूवल. तब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, whom are you going to sell it? क्या पता भाई तुम टेररिस्ट के साथ लिंक्ड हो और तुम उसको बेचना चाह रहे हो. आज के टाइम पे डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं हो रहा है, देन व्हाट यू आर अप टू. तो ड्यूल यूज प्रोडक्ट्स होती है, बिकॉज द पीपल हु हैव यूज्ड दोस केमिकल्स फॉर हॉस्पिटल, जो लाइफ सेविंग सिस्टम है, वहां पे लोगों ने बम फोड़े हैं. तो कीप दिस इन माइंड. तो ये स्कॉमेट लिस्ट आती है. तो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू चेक फॉर. ये हमारे माई बाप है, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. These are the people who can modify, change, cancel, or even say that don't export. They have every authority to do it. Okay. So then come Indian Trade Portal, duty and market access, market infos that you can easily get. And many people have their thought process, right? Sir, कौन सी सर्टिफिकेट लगेगी, यहाँ पे पता चलेगा. Okay. So just visit those websites. थोड़ी बहुत आप समझने के लिए कोशिश कर लेना. अगर नहीं आता है, ask me, I'll tell you. Okay. या उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है. यू कैन जस्ट गो एंड सर्च. व्हाई एचएस कोड मैटर्स? रॉन्ग एचएस कोड, रॉन्ग ड्यूटी, रॉन्ग ड्यूटी, रॉन्ग शिपमेंट, कस्टम में मटेरियल अटक जाएगा. देन व्हाट? ऑलवेज वेरीफाई योर एचएस कोड विद द कस्टम बिफोर शिपमेंट. वंस रॉन्ग डिजिट कैन कॉस्ट यू लैक्स या क्रोर्स. अगेन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू. थोड़ी भी गड़बड़ आपने करी तो यू आर डन फॉर इट. ओके. So I have bit, you can let me know. आज हम क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. What have we covered here? The import export is a massive opportunity. Indian exports are growing every year. ऐसा तो नहीं है Indian exports are stopping. थोड़ा we have a glitch with Trump and war and other thing, but yeah, these are all temporary, right? Trump हमेशा के लिए तो नहीं है. Mid election आने वाले हैं. Already the court has given a verdict that he cannot impose tariffs. So then you have a lot of things to fix it, right? You don't need factory crows or years of expertise to start. आप आराम से शुरू कर सकते हो. Start learning about it. IEC is mandatory, GST is mandatory, AD code is mandatory. ये शुरुआत है. Start with this and then you can take care of it. 1000 रुपए में खुद करोगे तो फ्री में हो जाएगा. No need to worry. So use the 5 filters जो मैंने बताया. You'll get a PDF, you'll get a video. So जो भी मैंने डिस्कस किया है, just make sure you write it down, make your own notes, and think and ask what is the challenge, so can I help you. So HS code are critical. अगर यहाँ पे आपने गलती करी, if you call a girl, good, you connect, you speak. If you just miss a number and you call her father, then you're in trouble. So there is a difference. So Trade Map, Export Genius, or any other tools you can use to help you to make decision making. Because these are all the numbers, these are all the data. The more the data you have, the more better decision you can make. So that is going to help you here. Okay. So the first task. How many of you already have a IEC code? Write IEC if you have it. Okay. Many people have it. So if you don't have it, then go ahead and register it tonight. Try to see what are the documents that may ask that's needed.
List 5 products for your export based on your access, knowledge or manufacturing capacities. कम से कम कल के लिए आपको 5 प्रोडक्ट लेके आना है. Select your product, whatever you think of. जो all the 5 criteria, whatever I have mentioned, please consider all of that. फिर उसके बाद filter है, वो select करो. Then tell me what is the 5 products that you can export from Indian market. And it has to fit all the criteria. इतना ध्यान में रखना, ठीक है? Create a trade map account जो free है. You are not going to spend any money here. So it's a free account. Please go ahead and create it. You need to verify your email and all of it. So please do it and open a free trade map account. Then research on HS codes. I'll show you how to do it, but still I'm just saying it. Yeah. Can you do this? ये एक्सरसाइज अगर आप होमवर्क कर लोगे आज रात के लिए, it hardly takes 10-15 minutes मेरे लिए, बट आपके लिए शायद आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, ठीक है? So before we go for the session Q&A, I'll just walk you through the few websites. Yes? Yes, no? Okay. Let me take you there. Stop sharing. Let's go back. Let me end the presentation here. Let me take okay, just give me a minute. Okay, just let me know when you are able to see the screen. Okay, just let me know if you are able to see the screen. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Just let me know. Say type screen in the chat box if you are able to see it. Yes, perfect. Thank you. तो ये है आपका GST. Many people know it. तो लिखा भी है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आपको ये कैसे हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई योर HSN कोड. अग्रीड, राइट? सो HSN कोड का मैंने क्या बोला था? 10 digit, 8 digit, 6 digit is standard, 2 digit is country specific. So मुझे यहाँ पे 6 digit of a US HS कोड जानना है. Can I do that from here? Yes, of course you can do it. So यहाँ पे देखो, I have looked for something. मैंने description use किया. I'll tell you how I've done it so that you can access that. Okay. So look at this. Search HSN chapter. By description मैंने यहाँ पे क्या डाला? Sesame oil. I've searched for it. What it says? Chapter 15. मतलब ये आपका institution code है. I'm just giving you a reference point as a college kind of a thing. Okay. So यहाँ पे आपका institution code क्या है? 15. तो इसके बाद आपका departmental code क्या है? Again 15. उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है? 50 of your section or whatever it is. उसके बाद जो आता है ना आपका country specific. ये यहां तक आपको स्टैंडर्ड रहने वाला है. Until the 6th digit, it's standard. Am I clear? Yes, in the chat box. Perfect. Okay. So here आपको चैप्टर समझ में आ गया. ये चैप्टर में क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है ये देख लेना डिस्क्रिप्शन. Sometimes your HS code and your description doesn't suit. तब क्या करना है? Go with the description, not with the HS code. समझ में आया? If I am saying I want to talk to Rohit from JB Experts, his employee code is this. अगर employee code मैच नहीं कर रहा, then what I do? Rohit Desai, कंपनी कौन सी, कौन सा डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई या फाउंडर जो भी है.
So then I go in the details. So that's how it's been done. So go with the specification if the number doesn't suit. That's it. Okay, that's a thumb rule. यहाँ पे अगर ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब गलतियां हो जाती है, जब आपकी कंटेनर अटकेगी, द इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत आप यहाँ पे would have taken it lightly, like हाँ चलो ठीक है क्या ही, this is all what it makes a difference. लोगों की लंका लग जाती है इस चीज पे. People lose money, people lose their containers, they get delayed. I'll just tell you the use case. HS कोड गलत हो गया, कस्टम वाला ने क्वेरी राइज किया, तो क्वेरी का रेस्पॉन्स हमें देना था, तो क्वेरी का रेस्पॉन्स हमें देने में 2 दिन लग गया क्योंकि नोटिफिकेशन मेरी फ्राइट फॉरवर्डर ने मुझे अपडेट नहीं किया. तो वो 2 दिन में एक्चुअली मेरी वेसल जो शिप है वो निकलने वाला था ऑन 3rd. मुझे नोटिफिकेशन मिला कब? 1 तारीख को. तो मुझे इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना था, मगर मुझे अपडेट नहीं मिला या मैंने उसको मॉनिटर नहीं किया. सो आई रेस्पॉन्डेड बैक ऑन 2nd. गवर्नमेंट कस्टम मेरे लिए नहीं बैठा है, दे आर लुकिंग आउट फॉर मल्टीपल थिंग्स. तो उन्होंने अप्रूव आने में या अप्रूवल क्लैरिफिकेशन अप्रूव करने में दे टुक इंस्टेड ऑफ 3 दे हैव डन इट ऑन 4. तो वेसल मेरे बिना निकल गया ना. नाउ माय कंटेनर इज देयर स्टैंडिंग एंड देयर इज अ रोल ओवर. रोल ओवर का मतलब क्या होता है? दूसरा वेसल आएगा तब आपका लोड होगा. तो पहले वेसल का रेट वगैरह सब मेरे पास था, दूसरा शिपिंग लाइन अलग है तो उसका प्राइस अलग होगा. एंड जितने दिन में वहां पे स्टेशन कराऊंगा, कंटेनर बाहर धूप में सड़ता रहेगा, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी पॉसिबल. अगर वो पेरिशेबल है, स्पेशली ऑनियंस, तो क्या, तो खत्म. दिस इज द लॉस. तो बी केयरफुल व्हेन यू आर पिकिंग द एचएस कोड. अगर आपको नहीं आता है, गेट द एक्सपर्ट्स एडवाइस, टॉक टू योर फ्राइट फॉरवर्डर्स, वरना ये पोर्टल पे जरूर आना. ओके, सो व्हाट आई से इज, यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ पे पूरी 6 डिजिट है, विच इज इवन. इफ यहाँ पे 6 डिजिट दिख रहा है आपको, 3 हियर 3 हियर, तो 6 है. इवन इफ यू गो टू द कस्टम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और चाइना और जापान, एनीवेयर, ये 6 डिजिट सेम होने वाले हैं फॉर दिस प्रोडक्ट. एम आई क्लियर? उसके बाद की जो कोड है ना यहाँ पे 2, ये चीजें इट्स ओनली फॉर इंडिया. ये सिर्फ इंडियन कोड है, ये मैटर नहीं करेगा. अगर ये जापान का टैरिफ आपको जानना है, तो देन जापान टैरिफ may not say it's 10, it could be anything, or it can be 10, it can be anything also. So there is no difference. ठीक है? Practically I'll show you how to do it, but still that's the point. So consider this is the important part. अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो आपका पूरा बिजनेस खत्म कर दोगे. कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, कितना मेहनत किया, कितना मार्केट सेलेक्ट किया, कितना अच्छा बायर ढूंढ के लेके आया, डॉक्यूमेंट में गलत एचएस को डाल दिया, भाई खत्म है उधर. That's all that's the smallest mistake what you can do, and that will the biggest conflict or issue that you create for yourself. That's as simple as that. Am I clear? Perfect. Sounds good. Okay, let's go. Here, can you see a small number here? Can you see this? Download HSN directory and Excel format. Just go ahead and click it. You'll get a whole list. Okay? There is nothing big science there. आपको क्या करना है? You need to come here. What's happening? You're not visible? Guys, the screen is visible. Please let me know. It's visible? Yes. Okay. Thank you. Thank you for confirming. Okay. What you need to do is go to GST website. Okay. Then comes under service. Then come under user service. Then comes under the search HSN code. Then you will land at this page. How you do it? GST ka website, gst.gov.in. There is no second science. There is no big science, right? So what you do is you go on service, you click on user service, then you come to HSN code. When it comes to HSN code, either if you know the code, click it or click on description. Are you exporting goods or service? If it's service, then there is a SAC code. That is not something required. But when you have picked goods, HSN code, description, goods, and I write oil here. I'm dealing in oil. I don't know what the oil is. So can you see this? Sesame oil, is this the same?
So go here, enter 545973. I don't know for what security they have kept it. What are we going to bother them? But still. Did you get this? Now we have ended up in the same page. Not the same page, I think. We have picked a different one. It was oil. Sesame oil and its fragrance. Was it a crude oil? No. Let's take oil, okay? Take anything what you need. I'll take sesame oil. And its fragrance. Maybe the code is done, okay? 499686. Okay, search for it. Or you can go ahead and download it. It will get a full file. Even that will also work. If you are online, why don't you do it? Just tell me if you are done, if you got that PDF. Just go and do the same. GST and services, then user services, then search for HSN. And select whatever the product if you have in mind. Or just use the one what I have it here. Okay? Sesame oil. Yeah, this was the same. But description suddenly changed, I think. Okay. I had a big length of description here. Okay, anyway. क्या पता GST वाले भी पीछे बैठ के अपडेट कर रहे होंगे. You never know. So, till sesame is all the same thing. So you have a country code. So what I'll do is, I'll take this code, okay? I'll just copy this. I'll go and copy this, okay? You guys are with me? Got a full list. Perfect, man. Perfect. That's perfect. तो उस लिस्ट में ना दो है. एक HSN है, एक SSE है. SSE कभी मत रेफर करना because that is only for services. That's only for people like who provide services. For you, it's only HSN. ठीक है? Am I clear? Mr. Naik, अमित नायक जी. ओके, पूरी लिस्ट डाउनलोड कर लो. पूरा वहां पे करीब करीब 2000 के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा. गुड टू गो विद इट. ओके, मोटा मोटा सारा प्रोडक्ट लिस्टेड रहेगा. सारे प्रोडक्ट्स उसमें रहेंगे. कभी कभी हो सकता है एक दो चैप्टर मिस हो चुका है. यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है इफ इट्स नॉट अवेलेबल काइंडली राइज द टिकट. जीएसटी पोर्टल इतना परफेक्ट नहीं है. वी आर स्टिल लर्निंग विद योर मनी. तो बेइज्जती. ओके, सो हम इतना परफेक्ट नहीं है. स्टिल अगर आपको मिसिंग है तो आप बता सकते हो. दैट्स व्हाट दे से. बट स्टिल व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप यहां पे तो कॉपी कर सकते हो ना. ये तो आप कॉपी कर लिया, ठीक है. तो नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ये है डीजीएफटी, जो व्हाट आई सेड, द लॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज पीयूष गोयल एंड ऑल ऑफ दैट. सो डीजीएफटी इज द बॉडी दैट इज गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर बिजनेस. Am I clear? So here, DGFT makes all the rules, regulations, everything from this portal. आपको आईसी ले चाहिए, क्या करना है? यहीं पे है. Look at this. Apply IEC, link your IEC, update your IEC. IEC applying is free, like 500 rupees is a government fee. Apart from applying, you need to link, if your IEC is not linked, to your Aadhaar and what do you call your IceGate and other thing, your AD code. And every year before April, you have to come here and update it. क्या update करना है? If you have changed your address, if you have changed your location, if you have changed something, तो just come here and update it. तो that is, हाँ, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हर साल 200 रुपए का पेनल्टी लगेगा. अगर आप कर दोगे तो फ्री है. सिंपल सी बात है, राइट? सो दैट इज समथिंग कैन बी डन. तो यहाँ पे सर्विसेज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. इफ यू वांट टू नो, डीम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे है. दिस आर ऑल टू मच फॉर यू एट द बिगिनिंग. तो इतना सब आपको अभी मैं सिखाने जाऊंगा तो आपका दिमाग फट जाएगा. ओके, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ईबीआरसी यहाँ पे है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, योर ईआरसीएमसी. जो भी आपको आरसीएमसी अप्लाई करनी है या रिन्यू करनी है या उसका अमेंड करना है या उसको सरेंडर भी करनी है, दिस आर ऑल समथिंग दैट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. ओके, क्या मांगेगा? यूजर आईडी एंड पासवर्ड. रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मांगेगा? लुक एट दिस. आप इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, हु आर यू, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है.
even you can go and complain about the companies right here. Okay, first name, last name, email ID, phone number, pin code, district, state, city and captcha. Agreed. OTP आपके नंबर पे आ जाएगा, then register it. Simple. देखो import export के लिए ना, for to get a import export they may ask you something, but you can do with other thing that can be freely done. Okay, try it if you want to. Okay, so I'll just go to regulations and I'll take you to export policy, export trade policy. Yes, foreign trade policy. So here you have all the options to read out. Illegal puri framework hai. See, there is no rules or regulations that I need to teach you apart from this. सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है. If you want to do it, follow it. आप आराम से कर सकते हो. जब भी आपको टाइम मिले, just walk through it. Okay. These are something that will be keep changing. Okay, don't need to worry about it. यहाँ पे दिख रहा है import export bank, डेटा बैंक दिख रहा है, एनुअली मंथली सॉर्ट ऑफ दैट. तो ये आपको चाहिए होगा. दैट इवन यू कैन डू इट फ्रॉम अदर पोर्टल, बट एज ये यहीं पे वो दूसरी पोर्टल भी है विच इज द सेम. ओके, तो आपको यहाँ पे मुझे पता चलना चाहिए सर फॉर माई कोड डू आई यू गेटिंग विद मी, यू विद मी, या यस और नो, यू विद मी एवरीवन. काफी लोग निकल भी चुके हैं. वाज इट बोरिंग? आई डू अ सेल्फ डाउट फर्स्ट. ओके, ठीक है. So what you can do is एक्सपोर्ट में हमें देखना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड द डिमांड. डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर अभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो व्हाट आई थिंक, एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब डिमांड तो है ना, तभी तो जा रहा है, वरना तो नहीं जाएगा. सिंपल सी बात है. तो व्हाट आई डू हियर इज, मुझे 2 डिजिट का भी कर सकता हूँ, 4 डिजिट का भी कर सकता हूँ, 6 डिजिट का भी कर सकता हूँ, 8 डिजिट का भी मैं कर सकता हूँ. सो व्हाट आई डू इज आई टेक 6 डिजिट एट द बिगिनिंग. तो स्पेसिफिक कोई एचएस कोड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. डू यू वांट इट? तो यहाँ पे आप अपना जो भी एचएस कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पे, so just get that thing done. So where is it? Yes. ओहो, क्यों भाई एंटर भी करने नहीं दे रहा? It's 151550. Okay, simple. Search for it. यही आना चाहिए था. yes or no? Yeah. अगर आपको लगता है जीएसटी पोर्टल में मेरा एचएस कोड गलत दिख रहा है, इफ यू सी दैट दिस इज एचएस कोड व्हिच इज रॉन्ग और आई डिडंट फाइंड एनीथिंग ऑन माय जीएसटी पोर्टल, देन यू विल गेट इट वेरीफाइड बाय हियर, बाय सर्चिंग हियर. अगर यहां पे भी नहीं मिल रहा है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली ट्रबल विद योर एचएस कोड, बिकॉज़ यहां पे गलत नहीं हो सकता. ओके, सो आई कैन पिक एचएस कोड फ्रॉम हियर. आई कैन लाइक ओके दिस इज दिस सॉर्ट ऑफ दैट. ओके, सो आई विल क्लोज दिस. And do I want in crores, quantity, million? I'll take it in million. I'll search for it. Oh, wow, nice. Okay. So here, मेरे पास कौन सा साल है? 24 and 25. How many number of HS code I have picked up here, which is 6-digit HS code. हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, that's okay. इतना मेहनत तो गवर्नमेंट तो करा ही देता है यार हमसे. Okay, so 6 digit और you can pick 8 digit also. अभी मुझे क्या है ना, these are the list of products. यहाँ पे 10 दिख रहा है, 1000 कर लो. So you will get all the products probably, right? Scroll करते जाओ, then you will get to see. 1000 प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है. एंड इवन अगर यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे ना, तो व्हाट इज दिस 6 या ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू 6000 प्लस प्रोडक्ट्स. कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? दिस इज ऑल 99 चैप्टर्स. 100 चैप्टर्स है तो उसके अंदर स्पेसिफिक्स है. ठीक है, टोटल 99 चैप्टर्स है, 100 चैप्टर्स नहीं है. तो 99 के अंदर सबके अंदर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर तक चला जाऊंगा. तो व्हाट आई कैन डू हियर इज, what I've selected, all commodities. Okay, all commodities. I didn't see any looking out for 1 or 2. Okay, so I'm just picking up everything. You don't need to print it because these data are always going to be available. That's free of cost.
You don't need to worry. You can just hit on submit. Now you want it in USDs. You have it here. And यहाँ पे आप देखो, there is option. यहाँ पे दिख रहा है. These are the filter options. अभी मैंने क्या बोला कि आपको डिमांड देखना है. अरे यार यहाँ पे 0 दिख रहा है, इसमें क्या डिमांड दिखने वाला है? सुनो, राइट? घोड़े तो आप बेचोगे नहीं. सुनो, तो घोड़े बेचने नहीं है तो फिर एंड ऑफ द डे डिमांड भी 0 है, तो पहले में ही रिजेक्ट हो गया ना ये. तो इसको क्या करो, इसको ऊपर नीचे कर दो. तो यहां पे देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड है या नहीं है. अगेन रेगुलेटरी वाइज ये सिंपल है, नो. सो पैसे कम लगेंगे, नहीं. डिमांड है, यस, मगर लेगा कौन? अगेन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट एंटरप्राइजेस. तो फिर आप यहां पे खत्म हो जाओगे. सो लाइट ऑयल्स, तो यहां पे देखते जाओ और यहां पे आपको पता चलेगा कि ग्रोथ क्या है. 23-24 का ग्रोथ कितनी है, 24-25 का ग्रोथ कितना है, एंड टोटल ग्रोथ यहां पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है. व्हाट इज दिस पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता क्या, माइनस साइन प्लस. ओके, सो 55 है. कौन सी है? स्मार्टफोन्स पे. तो क्या आप डील कर पाओगे स्मार्टफोन्स में? कर तो सकते हो, मगर कोई मोबाइल कंपनी आपको 2 पीस बेचने के लिए नहीं देगा, लाखों में देगा. आपको लाखों की कमिटमेंट में ही मांगेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज. सिंपल होल राइस, मिलेट, पॉलिश्ड, ये वाले हैं. स्पेयर्स हैं, श्रिम्प्स हैं, विच इज अगेन फ्रोजन. ओके, अल्यूमिनियम है. जेट, अगर आपको इंजन में काम करना है, यू हैव जेट इंजन हियर. बोनलेस है, अगर कोई मीट में काम करना है, यू हैव इट हियर. तो ऐसे करते जाओगे ना, एक एक चीजें बारीकी. यहां पे देखो, बेसिक सिंपल रूल है. तो अगर मुझे टाइम कम है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक तो इसको ऊपर नीचे कर दूंगा, सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट शेयर कितनी है एंड ग्रोथ कितना है. ये देखो, ये थोड़ी क्रेजी नंबर नहीं लगेगा आपको कि ग्रोथ हो इतना बड़ा ग्रोथ, मगर सेल तो हुआ ही इतना पॉइंट में. छोटी प्रोडक्ट है, नॉट दैट बिग, तो उसकी वजह से उतनी ग्रोथ दिख रहा है. बट अगर आप ड्रास्टिकली ग्रोथ वाइज अगर आप कम करते जाओगे ना, जहां पे वॉल्यूम भी है, ये चीजें आप फिल्टर तभी ऐड कर सकते हो व्हेन यू गो फॉर एक्सेल. पीडीएफ में आप कुछ नहीं करोगे, यू कांट एडिट. एक्सेल पे अगर आप करोगे ना, तो मल्टी फिल्टर जो है ना, इसको भी ऊपर नीचे करो, इसको भी ऊपर नीचे करो, देन यू गेट अ होल सिस्टम दैट. तो वो आप अपने एंड से कर लेना, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट. वरना सिंपल सी बात है यार, जाके यहाँ पे सर्च करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है. ऑयल, सर्च इट. इतने सारा तेल आ गया, इसमें कौन सा तेल में आपको काम करना है, तो पिक वन ऑफ इट. तो यहाँ पे देख लो कौन सी एचएस कोड है. ना कॉपी करने दे रहा है ना क्या यार. ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करता है, मगर आधा अधूरा करता है. दे आर गुड एट वर्क, बट दे डू हाफ एंडेड, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो नीम सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, सेसमी ऑयल, व्हाट इज इट, नाइगर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, oil. This is whole of things of oil. Okay, so pick anything and work around with it. Am I clear? यहां तक समझ में आ गया? चलो सर, ये प्रोडक्ट अभी अगर मैं जो सर्च कर रहा हूं, इज इट द प्रोडक्ट दैट इज बीन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड? तो अगर यहां पे आपको वॉल्यूम कम दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो वॉल्यूम, बट दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव हर्ड दैट इज बीन एक्सपोर्टेड, तो आप क्या करोगे, इसको इंपोर्ट पे डालो. Again, look for the same code specific for something, search for it. बस यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट आया एंड देन यू गेट इट. इसको आप 1000 पे कर दो, यू गेट टू सी द होल लिस्ट. तो फाइंड आउट द सेम एचएस कोड एंड सी वेदर देयर इज अ वॉल्यूम और देयर इज अ नो वॉल्यूम. वरना ऊपर नीचे कर देना. अभी मुझे बताओ, पेट्रोलियम तभी भी टॉप पे था, अभी भी टॉप पे है. सो व्हाट डज इट मीन? If I can see the same product, same HSN code pops up in exports and the same HSN code pops up on import, what does that mean? It means that we are importers for self-consumption and in the same time we export the product. Am I clear? अगर दोनों में आपको ये नंबर टॉप पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल भी करते हैं, हम किसी और से मंगवाते भी हैं, हम उसी चीज को अच्छे से बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. द क्रूड ऑयल, व्हाट वी गेट, वी रिफाइन इट, वी यूज इट फॉर आवरसेल्व्स, along with that we re-export it to European markets.
सुनो, समझ में आया? Exactly. It has high demand in both import and export. So, do we have to get in this business? Yes. If you are money, get into it. वरना नहीं तो रहने दो. So look out for other products, right? Aluminium waste and scrap. Volume यहाँ पे दिख रहा है, growth यहाँ पे दिख रही है. So look for that. Scrap again restricted. ये आपको कैसे पता चलेगा? So now just take the HS code, okay? क्या है? Okay, let me do this. 760200. Okay, this is the HS code I'm picking. Okay, तो what is the next step? तो ठीक है, यहां तक पहुंच गए. नाउ ट्रेड एग्रीमेंट में मेरा लॉगिन अभी है नहीं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू लॉग इन और यहां पे आप सेम एचएस कोड एंटर करो 760200 760200. ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेना एंड देन यू गेट इट. इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है? एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करना है? वी आर यहाँ पे कौन सा डेटा हम चेक कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर इंपोर्ट्स, राइट? So we'll look out for imports. We'll say that, okay, we are looking for import, and then we select import India. Okay. यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, but still I'll say this. Okay. This is all under highlighted, but still when you log in, you will be able to look into it. So HS code यहाँ पे है, India यहाँ पे लिखा गया है, and am I importing from anywhere or is it something from a particular country? तो मुझे कौन सा कंट्री दे सकता है वगैरह वगैरह. आई जस्ट गो एंड पिक एनी कंट्रीज, और मेनी टाइम्स इवन इफ यू लीव इट ब्लैंक तो यहाँ पे सारा कंट्री ले लेगा. आपको पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम का स्क्रैप इंडिया में कौन सा कंट्री भेज रहा है, सो दैट यू नो दैट इफ आई हैव टू डू दैट 20% ऑफ वाला बिजनेस जहां पे इंपोर्ट मुझे करनी है, आई विल गेट टू नो व्हिच मार्केट आई हैव टू बाय. तो वहां पे आप क्या करोगे? यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सप्लायर. दैट्स अ डिफरेंस. If you're an exporter, you are looking for the buyer in the outside market. When you're an importer, you are looking for a supplier in the international market. That's it. There is no big difference. Okay. So guys, here you got to know it. Then you came here, searched for it. Again, here, can you see this? This is only 6 digit. 6 digit is a wide umbrella. Okay. Then you have a website which is called India Trade Portal. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑयल ले लेंगे फॉर अ सेफर. मैंने ऑयल बोला, ऑयल केक दिखा रहा है, ठीक है. लेट्स सी. ऑयल यहाँ पे कहीं पे सेसमी ऑयल, you get so many numbers now. Okay, lobster oil, that oil, this oil. My code was what before? It was 15. So chapter number doesn't change. Okay, you need to look for 15. It's still at 0305015. Yes, I got it here. 15. I have to match it. 1515 151550 151515. So it's simple. Okay, you just need to match the same number. 151550. Where is it? Okay. Okay, 151550. Here there are so many products again. Okay, but what I'm looking at is sesame oil, edible sesame oil. Here now my number is matching, but in the same time I have so many products in the same number. So now what I'll do is description. I said you before, you need to go for description. अगर नंबर गलत आता है तो डिस्क्रिप्शन के साथ जाइए. तो अगर नंबर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन आपको यूज करना है. सो हियर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं सेसमी ऑयल, तिल ऑयल मुझे एक्सपोर्ट करनी है. तो व्हाट आई डू इज आई क्लिक ऑन एक्सपोर्ट. इफ यू वांट टू इंपोर्ट, आप इंपोर्ट पे क्लिक करो. तो यहाँ पे सारा चीजें देख लेना, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एडिबल ग्रेड है, क्रूड ऑयल है, अदर्स है. मुझे एडिबल ग्रेड में चाहिए. एडिबल ग्रेड इज वेरी स्मॉल हियर रिटन, बट जब आप अपने लिए करोगे यू विल गेट टू नो इट. ओके, तो मुझे अभी कौन से देश में बेचना है? सो आई एम प्लानिंग टू नेदरलैंड, क्योंकि नेदरलैंड इज अ गेटवे फॉर यूरोपियन मार्केट. ठीक है, तो मैं बाकी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूं, बट आई कैन पिक ओनली 5. ओके, सो मैं क्या करता हूं, आई जस्ट कीप इट फॉर नेदरलैंड. आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, सो देन विल गो फॉर नेक्स्ट. तो नेदरलैंड में जैसे मैंने बोला था 6 डिजिट, यहाँ पे देखो 151550 इज सेम.
बट आगे देखो ना, 1100, 1900, 9100, 9900, ये चीजें तो हमारे में नहीं था। हमारे में मैक्सिमम आपको कितना दिख रहा था यहाँ पे 15155010, बट यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे स्लोली उसके ऊपर हवर करो, जस्ट डोंट क्लिक इट, ओके। तो यहाँ पे हवर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी डू दिस वंस अगेन। सो नेदरलैंड, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ओके, नाउ यू आर गेटिंग इट। सो आपको जाके थोड़ा, अगर आपका नजर कमजोर है देन गो क्लोजर, इफ यू हैव वीक आईज देन गो क्लोजर, ओके। जस्ट सी व्हाट इज इट, edible, crude oil, human consumption. So one is I'm looking for human consumption, obviously not for animals, because there are oils that are being consumed by animals also, so for various different purposes. अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे बहुत सारे एचएस कोड्स है, यू आर बिट पता नहीं यार, इसको गलत पिक कर दूंगा तो Rohit this has already scared me, so if I pick a wrong HS code, then what? Then what you have to do is you can take a list of this HS codes, you can get it confirmed by your buyer. Just in that case, here 99.9% I say that human consumption is what I'm looking at, and this is my perfect HS code. Still I'll get it verified. I don't just go randomly, but I still get verified. But एक चीज होता है यार, ये इतना अनाड़ी है, इसको खुद नहीं पता what is the HS code that is dealing in Netherlands. Then एक impression की भी बात होती है. So it is always about perception, like how the other person is going to look at you. And if you're asking too many questions, and that is also very small silly questions, then you're dead. Okay, so don't trouble your customers there. So what you have to look at here, पहली चीज, when you come at this website, don't look at tariff, बाकी क्या है क्या नहीं है, nothing. Go on export policy. अगर if that is here prohibited, what do you mean by prohibited? जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए. You should never get into that business. Restricted. Restricted means, okay, I'm just restricting it now, but you can do it later. Or else come and talk to me and then I'll approve it and then you can do it. That is restricted. Prohibited is illegal. What is it? Animal, organs, human organs, smuggling, drugs, affim and all of that. So these are all illegal. That is prohibited. That you can't deal. वरना Pablo Escobar बन जाओगे यार, simple सी बात है. Okay, and there is someone else also got killed recently in Mexico. So all this drugs and everything. Okay, so this is the first thing what you need to check. कि भाई इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि आप एक्सपोर्ट करो या नहीं. Do the Indian government, and who is going to define this? TGFT. Simple सी बात है. These are all the MyBabs, no. These are the big lords who is going to tell us what to do, how to do it. So export permitted freely. You can do it. There is no problem in that. Okay. And even many times you get a t-shirts. T-shirts are freely exportable. But if you are writing the versas of Holy Quran, then it's restricted. The same product you may have freely and as well as restricted. What is restricted? Then you go and see like what is written there or something. Here it's freely exportable. So freely is a good news. Okay. Next, duty drawback. If I'm paying any duty or if I have paid any duty, so how do I get it back? So it's 0.15. That's a duty drawback. Incentive is what I call it. If I am a manufacturer, if I want to have a factory, so I want to get money because I don't have a rich father. So in that case, what I do? You can't see. What you can't see? You can't read it, right? That is because the screen size and everything. The website is not optimized for the screen, so I can't help it. But I would suggest is when you do the thing, when you watch the recording and when you do it right, so you'll be good. Okay. So here you have HS code, and what you look at is if I want to start a manufacturing and I have a MSME Udyam Aadhar registration. In that case, what I'm going to get the scheme here is I'm able to get whatever the rate of interest. I'll be waived off with this 2.75. That is the cheapest what you can get. Okay. Sometimes it will be 5, sometimes it will be 3, sort of that. Okay.
So that is the exemptions what you can get. Again, you can go and check with your bank. And for merchant exporter, many times like, okay, so is this only for the manufacturers? No, it is for merchant traders also. If you're procuring, if you're processing it, if you're building a warehouse or something, you can still go and get it. Again, go check read out the notice and see what is written here, under what eligibility criteria. Eligibility criteria itself is going to define you. What is your scope? What is that you need to have? What is a pre? What is post? Export credit, RBI. Many people have this thought, right? So, do the government gives me money? It will give. Depends on your eligibility. So that if it start giving money to everyone, then what I say? Indians don't even work. Road tap. So if you look at the road tap, here there is a number 0.6. This is always given on your FOB value. Any incentive by Indian government is given on FOB value, not on CIF. How much ever good or bad your prices are, doesn't matter. But your 0.6% is very much important, because again, do I need to consider this at the time of pricing? No, you don't need to do it, because this is very dynamic. This is very much changeable, because before it was, if it was 1%, now it is 50 paise. If it is 1%, then now it's 0.5%. That is the problem of this incentives. It's peanut. Still, now government wants to give you a half a peanut. So as simple as that. Okay. So when you're building your business, do I need to take this consideration? You need to when you are taking an extra benefit, but you cannot price it because of this number. Okay, what I say is, what I mean exactly is, okay, I'm manufacturing a t-shirt, I need to sell it at 100 rupees. Now I have a competition coming from China saying that, okay, those people are quoting at 98, but my production itself is 100. What I feel is, okay, let me do no profit, but I'll take an incentive where Rotap is saying it will give me 2 rupees. So I'll reduce it and I do it at 98. Now, by the time you receive the money, the remittance and everything process happens, the government of India, the DGFT decides that there will be no incentive further for this HS code. And that is exactly your HS code. Then what do you do? That 2 rupees, what you thought that you will adjust with the incentive, that is gone. That is your net loss. Which you thought, which is no profit business, now that turned to a loss. Never consider the incentives under your quotation or your performer invoice or invoice or agreement, sales document, whatever it is. Mind it. Okay. Then comes the GST and other parts. If you have the GST here, 5%. Okay. That's the amount of GST that you need to pay. But what government says, export the product, not the duties or taxes. Then get back the duty. You pay it, then claim it and get a reimbursement. Array, sir, what is this? I have to arrange 5%. I don't have that much of money. I hardly arrange the raw material cost. Then there is an option, go for LUT in GST. Going GST, again services, you will get somewhere, okay, let me see this. There is something called as letter of undertaking, okay? That is LUT. Array, I think there is some other options I have to go through. Yeah, maybe I need to log in or something that you need to check. Okay. Yeah, again, this is not my expertise. Go to tell your CA to do it. He'll get it. Or else you tell us, my team, there is a legal team, the compliances team will take care of it. Okay. If you want to get the LUT for your GST portal. Okay. So you check the eligibility. Now you know what is the GST is being charged. Either you pay it and reimburse it, or else take a LUT and bypass it. Simple. Then here comes, there is something called here, sanitary and pathosanitary measures. Click on that. You will get every document. What I said, I've said you before, sir, what is the rules, regulations, policies? How do I get to know what compliances I need to follow? What is the, what do you call, packaging label restrictions? What is the lab restrictions? You get everything here. Labeling and nutrition and health claims. Click here, you get a document. This is again from European Union, okay? Because Netherlands falls under that. European Parliament has passed this council, so read out.
Read out, understand. Is it possible to read out all documents? Maybe, maybe not. At the end of the day, we are in business. Either you go, take a pain, put the effort and read it, understand it. No, I don't have that much of time. I need someone support. Call us. But we don't do this small work, but you can take the full service. We can help you with that. Okay. So look at this, all policies, general policies. And there is something which I want you to get your attention. That is on certificate of origin. Find out that. There is something called a certificate of origin. It should be somewhere here. If the free trade agreement is done, you need certificate of origin preferential, which basically says that where exactly this product is made. It's made in India. Okay, tell me, get me a certificate for origin of certificate of origin. Any chamber of commerce can give you. Your freight forwarder will do it. You don't need to bother about it. Okay. So, but when you are doing a free trade agreement, if you are exporting under this, because the import duty you need to calculate. If your import duty in Netherlands should be waived off, then you need to get the certificate of origin preferential. That is again your freight forwarder will do it. Okay. So origin, I don't see the origin here. It should be somewhere here, but yeah. When you're trying for your product, please walk through it. Okay. You get all of these documents. Do you get general documents? This is universal for all your products. Whichever the product you're going to export to European Union or especially Netherlands. This is all general. Then you have specific. This is for this particular product. Look at here, fat oil, fat oil, sort of that. Okay. Then food, because this is edible for human being, then these are all the restrictions and adulterations, MRLs. MRLs are basically saying that, okay, if your poison is a content or heavy metal is a content in your oil, at what percentage is allowed? Because you know these are not human made, these are all natural products. The one or the other thing will be wrong. So how much wrong it can be? जहर लेना है, जहर कितने परसेंट तक चलेगा ये वहां पे लिखा रहेगा. तो उसके अगर when you know that the number, जब आपको पता चलेगा कि इतना लेवल तक अलाउड है, तो आप क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्ट टेस्ट करोगे और उसका टेस्ट रिपोर्ट इसको कंपेयर करोगे. अगर उसका डिफरेंस जो मैच है उससे नीचे है तो चलेगा, अगर उसके ऊपर है तो कल अगर आपने भेज दिया वहां पे जाके माल अटक जाएगा. अगर वो लोग टेस्ट करेंगे आपका खत्म. सर हर बार टेस्ट करते हैं क्या? नहीं, हर बार थोड़ी ना. एक्सीडेंट हर दिन थोड़ी ना होता है. Accident doesn't happen every day. It happens once in a while, and by the time it happens, you're dead. So be careful on that. So these are not something that you just play around with it. Okay. Then residues, MRLs जो मैंने बोला था ना, that's exactly here. That is specifically we call it as MRLs. So what you can do is, here is the other links which you can click and go to the other pages. Sometimes it opens, sometimes it doesn't. So sort of that is always there. It's all governments. Okay. Not only Indian government is bad. I say like every government is horrible. So look at this, click on that. I think it's a full link. Okay. So here, because European Union is a cluster of countries, they speak multiple languages. So you need to read something. If you are able to read it, then that is English. If you don't read anything, then you are illiterate. Okay. Okay, I see this. Yeah. You can see here BG, CS, DA, you look forward. EN, which is English. Okay. The server is temporarily unavailable. Now, does it mean that you can export without any limitations? No. There is a rule that you need to follow, or you need to go to their customs and download the whole document and read it. Just that this server is not working. That's simple. Okay. You are able to understand or catch up with me? Oh, okay. 5 minutes left. So then come Ministry of Corporate Affairs. This is all the same data. What you get, what I've shown here, you can go and get it from DGFT in trade statistics, or either you come here and do the same thing. It's the same website what it takes to. Okay. No changes. Am I clear? You got this list from TradeMap? Okay, let me see. Okay. Okay, guys, this is all what I wanted to share with you today.